Okay, so this is going to be an audio lecture recording for chapter 5. More specifically, I'm going to cover the sections from 5.5 onwards, which is actually related to e-commerce payment systems. Then at the end, after I'm done completing all the sections relating to the payment systems from 5.5 onwards till the end of the chapter, which is till 5.6 and then 7 is a case study, I will then go back and start talking about the e-commerce security related stuff. This is because in most cases the security related topics are not directly part of the course in that way. So if anybody is interested in understanding them, because several of those concepts are related to bitcoins and other cryptographic systems, so you can listen to them if you want to. However, the sections from 5.5 onwards till 5.7 are the ones that are necessary to understand e-commerce payment systems. So let's start off with 5.5. Now in the 2017 edition, this is page number 307. So first it talks about the trends, the various trends that have been happening throughout time about e-commerce payment systems. It talks about that there are of course several methodologies. You will recall that this was already discussed in our case bundle number 5, if I'm not wrong. Case bundle number 6 or 7. So those were the payment systems related case bundles. Anyways, so we talked about cash and credit cards and debit cards and stored value accounts and stored value cards, several of those various features. Now it talks about the trends. We don't need to go through that. However, it does talk about the fact that the payment systems all over the world are now mostly switching towards online payments. And more specifically, even in those online payments, it is talking about different new mobile payment methods and various other peer-to-peer payment systems. For instance, one of the most common payment systems is PayPal, which is used practically every other country except for ours and a few others. Anyways, then there is of course Apple Pay, there's Android Pay, which is now called Google Pay, and there's Ali Pay, which is a payment system, a payment system that has been made by Alibaba. Then there's Samsung Pay, and there's several other payment systems. So there's a shift in the e-commerce industry towards these various payment systems, and that's because these are much more convenient as opposed to the usual methodologies used, such as credit cards or debit cards and stuff. Now figure 5.14 talks about how a credit card system actually works. So in the credit card system, you need to understand some few key terms. Now again, this was already discussed in the case bundle and in the main case study, but I'll still reiterate how it works. Understand that in the credit card system, each of the two main parties, which is the buyer or the customer and the merchant or the seller, both of them need to have bank accounts. So the bank account of the customer is the one that usually issues them the credit card. Hence, it's called the issuing bank, while the bank account that is held by the merchant is the acquiring bank or the acquiring account. That's because it accepts the payments. So if you keep this diagram in front of you, and I'll go through it. So the consumer makes a purchase, which is to say that the customer or the consumer actually is on the website or using the app or whatever, uses the add to cart method to add whatever products they're interested in buying. Then those products, once they're added to the cart and the person presses the checkout button, this information is sent to the merchant or to the merchant's website that you are interested in buying all of this. The merchant's website has these various softwares, the shopping cart software to be precise. It communicates with the payment gateway. Now the payment gateway is the clearinghouse. In most cases, this is automated. And for instance, in the US, all of these clearances, which is basically the communication between these banks, multiple banks, happens through a system, an automated system that is controlled by the Central Reserve Bank in the US, and it's called the Automated Clearinghouse, the ACH. Now, in our case, that's not how it works, but these different banks talk to each other. So there's not a centralized automated system like the US, for instance, has. So using a secured connection, and the secured connection is through secure socket layer, and the TLS, which is the, if I'm not wrong, it's a transport layer security. Anyway, so these two protocols are used for security. So the merchant software then contacts the clearinghouse and then sends the request
to the clearinghouse to go and verify from the customer's bank whether or not this person actually has this bank account, actually, and has the credit limit to actually pay for this particular item. So the clearinghouse contacts and verifies whether the account exists, and then asks the bank, the issuing bank, to confirm whether or not this person is allowed to receive a credit and can make a payment. The consumer's bank account, or what is referred to as the issuing bank account or the issuing bank, then actually communicates with the authorization networks. Now that's not here in the diagram, but they talk with the authorization networks. Who are the authorization networks? The authorization networks are, of course, like Visa, MasterCard, Union Pay, American Express. All of these are the authorization networks. These networks are the ones that allow banks to actually issue credit cards which have these logos on them, which are actually accepted wherever these networks are accepted. This is so that your credit card, which belongs to a bank which is in your country, is going to be, it should be acceptable in any other country. So that happens through these authorization networks. Anyways, so once the consumer's bank or as it is referred to, the issuing bank verifies that the account exists and verifies that the credit limit allows this person to actually receive a credit and therefore pay on their behalf, they actually give the money on behalf of their customer, their credit card holder, to the merchant bank. The money is then transferred to their banks. Of course, that doesn't happen immediately. This can take up to a few days. And now the consumer's issuing bank, the issuing bank is going to get money from the customer when the customer pays the credit card bill, and that will usually happen by the end of the month. This is why one of the biggest cons of the credit card system is that the payments take a long time. It takes all the way up to a month for everyone to finally receive their payments. Another disadvantage of the credit card system is that obviously it is not anonymous, so the government and the authorities have a track of what you're buying and who you're buying from. Another disadvantage is that it usually accrues interests, of course, and if you don't pay them in time, it can compound, so it's a compound interesting. One of the advantages of the credit card is, of course, that you get to be able to pay for something that you don't have the money for right now, and you can still buy it. And another advantage for that is the accrual of those points. Another advantage that is acceptable in many parts of the world, and even if you don't have hardy cash, you can actually still use a credit card in any of these places. So those are some advantages. And the biggest advantage of all, probably, especially compared to debit cards, is that credit card payments, if you've made a payment and let's say it's a fraudulent payment, somebody else is paying on your behalf, somebody stole your card, or maybe you want to, you change your mind, or for whatever reasons, credit card payments can be reversed. Even if there's an error, it can be reversed, but that is not the case with debit cards. So those are some advantages. Another disadvantage is that credit cards give you this illusion that you have more money than you actually do. So if you are the kind of person who spends a lot of money, credit cards are a bad idea because they give you that wrong impression. So these are some information about credit cards. So then it talks about different standards and different things that are necessary. It talks about credit card e-commerce enablers. So it talks about the internet payment service provider, for instance, Authorize.net. This is the company that actually allows a merchant to secure an account with the merchant account provider partners and connect with them, and to allow this payment gateway thing that I was talking about. This payment gateway is the software that actually talks to your shopping cart and that talks to the automated clearinghouse. So those are part of one of the enablers. Then there is this another enabler called Payment Card Industry or Data Security Standard. It talks about all of those security standards that are used by any of those 5 major credit card companies that I just talked about, the authorization networks of those companies, which is Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, and all of these. So these are a set of security standards that are supposed to be followed by all of these credit card companies. So it talks about the limitations, which I have already discussed, and you can go through those. Then it falls to the alternatives to online payment system. Now, before we move on, I don't think they've discussed debit cards in the book, but I will still cover them. So debit cards these days also are approved by and are authorized by Visa, MasterCard, American Express. So you can use them like credit cards online. You can use them to swipe them at any retail store. However, the disadvantage that debit cards have is that, as I mentioned, is that you cannot reverse any entry. So if there's a mistake on the part of the person punching it in, or if there's a mistake, or if it's a fraudulent activity, there's no possibility of reversing the entries. Another problem with debit cards is that it's a debit card. So obviously, if it's stolen, somebody can use it directly. They can swipe it immediately.
So that's another disadvantage. Another disadvantage is, again, like credit cards, they're non-anonymous, and although the advantage is that they're acceptable in many places because of the Visa, Mastercard authorizations, but the disadvantage is that at oftentimes there are places, especially in our country, that's true for credit cards as well. They don't accept credit or debit cards, so you automatically are at a disadvantage. However, in a lot of cases, the online payments, especially for digital products, which is for intangible products, you have to do them through credit cards and debit cards in our country. Another disadvantage for debit cards as opposed to credit cards is that several websites, especially international retailers, do not accept debit cards. They allow credit card, but they don't accept debit cards. The real reason for that is the issue of reversal entries. So that's also something that you need to understand about the differences between debit and credit cards. Remember that earlier in the history, ATM cards used to be separate, and they from debit card. And these days, however, you have these integrated cards which can be used anywhere. Anyways, then it talks about alternative online payment systems. So there are several alternative online payment systems. For instance, this online stored value systems such as PayPal. Now you'll immediately be confused about, oh, but this is not really stored value, is it? It is stored value. Think about it. I've been talking about this in class as well. We've discussed this while we were discussing the case bundle, that stored value actually refers to the fact that the amount that you had, say for instance if it was in a fiat currency like US dollars or Pakistani rupees or whatever, has now been converted into this new system. So in the case of PayPal, you need to create a PayPal account that is then connected with your bank account, and whatever money you want to transfer into your PayPal account has to be done through your bank account, or through a credit card or a debit card. So obviously that means that US dollars in fiat currency has now converted into this new system. So which is why, and you can use this system wherever it's acceptable. So right now it says in the case here that in the chapter here that PayPal is acceptable in 202 countries and 25 different currencies in the world. So our country unfortunately is not part of that list. So this is how you do it. So you transfer that money into that system, and that's where you can actually make your payments through it. So therefore it's an online stored value system in that way. But it is two-way in the sense that you can withdraw money again from it, but that has to be done through the bank. You cannot do it directly. You can't immediately directly get money out of PayPal. That's exactly why you need to have a bank account as well as a PayPal account to be able to use them. Another alternative payment system that's become very common these days is through mobile phones or mobile payment systems. You can use your smartphone like a wallet. That's because the idea behind this was that just like people do not forget their wallets at home, earlier days that's how it used to be. But then that often happens. It often happens you forget your credit cards or your debit cards, or you may not even be carrying your wallet for some reason. But the one thing that people never forget these days, and even if they do, they usually go back and pick it up, is their smartphone. So smartphones were considered to be a good medium to store your money. Just like credit or debit cards, those are just representatives. Those are plastic representatives of some money that you own. So similarly, they decided that cell phones would be a good idea. So in order for cell phones to be used like credit or debit cards, you can't swipe them, obviously. So another technology used for this was NFC, or near field communications. So these are basically a set of short range wireless technologies. Think of them like something similar to but different from RFIDs. It's based on the same kind of technology. What you do is you go to a store, and if you want to make a payment, if you bought something on a physical retail store, you want to make a payment, you basically take your phone, you switch on the app. There are various apps that actually allow you to make that payment. So there's Apple Pay, there's Google Pay, there's Samsung Pay, there's Alipay, any of these apps, or several others. And they basically have all the credential informations, all that you've put in for your various bank accounts. You can choose whichever bank account you want to pay from, and you choose that, and then you basically approve that transaction through a PIN code or maybe a fingerprint scan, and then you tap it onto this device that the retailer has, which is an NFC, similar to like a credit card machine where you swipe it. So in this case, you tap your phone on it. It could be even a tag, a small piece of plastic which has that NFC receiving chip. So that's how you do it. So NFCs payments are becoming very common, and a lot of these companies are already getting into it.
So those are some interesting ways to pay. Then there is a social or mobile and peer-to-peer payment system. So in addition to a mobile device as a way to make your payments at a physical store, you can even do it online. So Google's wallet which is now again called Google Pay, can actually be used for this. There's Facebook Messenger payment systems that you can actually pay through this. So you don't need to be present physically. So you can do all of your online payments through your phones as well, because your phone can actually connect to your bank account through these various apps far more conveniently. Of course, there are a lot of regulations and rules that need to be applied, as it talks about a lot of rules, but most of these rules don't apply to us, so you can skip this part. Moving on, then we talk about, we are on page 315 by the way, so we talk about digital cash and virtual currencies. Understand कि digital cash जो होता है is essentially, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, digital cash is the term that you usually associate with bitcoins or cryptocurrencies. Yeah, it says it in definition. If you read the definition, you'll understand. It says it's an alternative payment system in which unique authenticated tokens represent cash value. Now, what do I mean by authenticated tokens? This is, well, technical term. It's a computer science term. Authenticated tokens basically means that whatever amount you hold or you're saying that you hold is verified through some kind of system. In the case of cryptocurrencies, this is verified through the blockchain. So this is essentially a very abstract or a very technical definition saying the same thing. So digital cash is just, well, cryptocurrency. So bitcoins are an example of such a system. Virtual currencies, now the name may sound very similar. Digital cash, electronic money, virtual currencies. You may think these are all synonyms. They're not. The only thing common in all three of them is that all three of them are in some form or another mediums or methods or ways in which value is held. Okay, so virtual currencies are all of the monies or all of the methods in which you actually represent value or money in some way in a virtual world. So gold in World of Warcraft, or ISKs in EVE Online, or Linden dollars in Second Life, these are all virtual currencies. Now understand that they are referred to as virtual currencies because in most cases these are only usable and only exchangeable, circulated within that virtual world. You cannot actually use these virtual currencies to make payments in the real world. Now there are cases where you may have an exchange that allows you to convert those virtual currencies into these fiat currencies, which are the normal currencies, but ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं होता. So most cases के अंदर virtual currencies are actually closed networks, unlike other cases जहाँ पे वो open networks हैं या जो है वो multi या फिर interconnect या फिर आप उसको कह सकते हैं कि those are N network connections, in the sense that you can make payments from and to that system. जैसे अगर हम US डॉलर्स हैं, मैं उसको पाकिस्तान रुपये में करा सकता हूँ, मैं उसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में स्टर्लिंग पाउंड में करा सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द केस इन वर्चुअल करेंसीज. इन मोस्ट वर्चुअल करेंसीज, वंस यू एक्चुअली यूज़ योर US डॉलर्स टू और योर एनी फिएट करेंसी टू बाय वर्चुअल करेंसीज, रिवर्स में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो वर्चुअल करेंसीज आर लाइक kind of like stored value cards, but they are only acceptable within that single network. So they are one within networks, spendable monies. Unlike say fiat currency, जो कि आप दूसरे नेटवर्क्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं. तो सारी वर्चुअल करेंसीज ऐसी नहीं होती कि वो लिमिटेड हो विदिन अ नेटवर्क. काफ़ी सारी जो है वो ट्रांसफर भी होती. फॉर इंस्टेंस लिंडन डॉलर्स जो हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू US डॉलर्स एंड वाइस वर्सा, बट से वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के गोल्ड के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते. फिर उसके बाद यहाँ पे अगली बात आती है, तो एक छोटी बात बीच में और बताना ज़रूरी है कि कंसेप्चुअली स्पीकिंग डिजिटल कैश जो है वो पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन ख़ास तौर से वो बैंड है. ठीक है, बैन से मुराद क्या है? बैन वो हो नहीं सकता इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक का कोई अथॉरिटी बनती ही नहीं. स्टेट बैंक तो उसके सिस्टम का पार्ट ही नहीं है. स्टेट बैंक जो बैन कर सकता है वो एक्सचेंज को बैन कर सकता है. तो उन्होंने एक्सचेंज बैन किया हुआ है कि किसी भी किस्म का पाकिस्तानी रुपीज़ से बिटकॉइन में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते. सो जब आप एक्सचेंज नहीं कर सकते तो दी ओनली वे यू कैन अर्न बिटकॉइंस बाय माइनिंग. यू इफ़ यू हैव देम वो एक अलग बात है, वरना आप अर्न से उसी तरह कर सकते हो, ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता. सो इससे मतलब ये हुआ कि इन दिस स्पेशल सर्कमस्टांस आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई डिजिटल कैश ऐसा हो जाए कि जिसको कोई भी दुनिया की फिएट करेंसी अब एक्सेप्ट ना करे, कोई भी सेंट्रल बैंक उसको एक्सेप्ट ना करे, एक्सचेंज को अलाउ ना करे, या कोई भी नेटवर्क और उसको अलाउ ना करे, तो ऑटोमेटिकली
दे विल बी एक्टिंग लाइक अ वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी यही होती है कि वो सिवाय उस नेटवर्क के उससे बाहर नहीं होती इस्तेमाल। अब इसके साथ साथ जिक्र आना बहुत ज़रूरी है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स का। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स में वो तमाम कार्ड्स की सिचुएशन आती है कि जिनमें आप फिएट करेंसी को या इवन डिजिटल कैश को, किसी भी फॉर्म ऑफ मनी को आप लेते हैं और फिर आपको एक ऐसा फॉर्म में उसको ले लेते हैं कि अब वो वैल्यू तो अभी भी है लेकिन वो सिर्फ उस नेटवर्क में यूज़ होगी। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल फ़ोन का क्रेडिट का कार्ड लिया है, आपने कोई गिफ्ट कार्ड ख़रीदा है अमेज़ॉन का, आपने कोई खाड़ी का गिफ्ट कार्ड खरीदा है किसी और रिटेल स्टोर का। अब गिफ्ट कार्ड क्या होते हैं? यू बेसिकली प्री पेइंग दैट रिटेलर एंड सेइंग कि अब इसकी वर्थ इतनी है। अब ऐसा नहीं है कि उस अगर आपने एक 10,000 रुपये का लेट से गिफ्ट वाउचर ख़रीदा है या आपने गिफ्ट कार्ड ख़रीदा है और आप अपने किसी दोस्त को देना चाह रहे हैं कि यार बजाय इसके कि मैं शॉपिंग करूँ उसके लिए आई जस्ट गिव देम दिस 10,000 रुपये का कार्ड। जैसे ऑनलाइन गेमिंग स्टोर है स्टीम, आप उसमें इसी तरीके से गिफ्ट वाउचर गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब वो कन्वर्ट बैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस जगह का, जिस रिटेलर का आपने ख़रीदा है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने गिफ्ट कार्ड ख़रीदा है या मैंने क्रेडिट ख़रीदा है, तो वो एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है। जैज़ फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है कि वो इशू कर सके दोबारा से पाकिस्तानी रुपीज़, है वो वर्थ उसी की है। वो एक अलग बात है कि कोई एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ कि जैज़ का 100 रुपये का कार्ड जो है वो 100 रुपये के बराबर है तो ये लो 100 रुपये, ये उस बंदे की मर्जी है। लेकिन टेक्निकली वो इशू बैक नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते 100 रुपये से 100 रुपये के जैज़ के कार्ड से आप किसी भी दुकान पे कुछ भी खरीद सकते हैं। वो अगर आपस में एग्रीमेंट हो तो बात और है, वरना आप टेक्निकली नहीं खरीद सकते। सो वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दैट अदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, इट इज़ नो लॉन्गर मनी, इट इज़ नो लॉन्गर करेंसी इन दैट फॉर्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने का है। फिर 5.6 के ऊपर वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट का। तो एक और जो सिस्टम अब हमारे पास बहुत कॉमन होता चला गया है वो ये पेमेंट सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए वेरियस बिल्स की पेमेंट्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग और प्रेजेंटमेंट अब होना शुरू हो गया कि जिसके थ्रू हम ऑनलाइन मंथली बिल्स की पेमेंट करती है। तो हम अपने मुल्क में भी करते हैं, ये हमारे वेरियस मोबाइल पेमेंट्स के मेथड से भी होता है, ये इजी पैसा के मेथड के थ्रू भी हो रहा होता है, ये डायरेक्ट बैंक में जाके भी पे हो रहा होता है। तो देयर आर वेरियस वेज। तो ये उसी सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है कि वो एक मार्केट बहुत स्पीड से ग्रो हो गई है और उसके कुछ मॉडल्स की बात की। एक मॉडल ऑफकोर्स ये ऑनलाइन बैंकिंग का जो मैं भी जिक्र कर रहा था कि आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर बैंकिंग करके आप डायरेक्टली पे करें। दूसरा बिलर डायरेक्ट है कि आप बिलर डायरेक्ट के अंदर कंज्यूमर के पास बिल आता है, वो ईमेल आती है और वो जाता है मर्चेंट की वेबसाइट पे जो भी सर्विस है और उसमें जाके अपनी बैंक डिटेल डालकर उस वेबसाइट पे कर देता है। ठीक है। एक और मेथड मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू है कि वो मोबाइल पेमेंट्स को कर रहा होता है, मोबाइल के थ्रू ऑफ कोर्स यही आप काम सारा मोबाइल के थ्रू कर रहे होते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास लास्ट जो आता है वो कंसोलिडेटर है। कंसोलिडेटर के मॉडल के अंदर कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि ये काम करके दे रहा होता है कि कोई एक सर्विस है, वो कहता है कि हाँ जी आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे बिल दे दें। इसको इसी तरह समझे कि आपका कोई दुकान वाला है, कोई जो आपका दोस्त है या जान पहचान वाला है, या जो आपके बिहाफ पे एक थोड़ी छोटी सी फीस लेकर आपके लिए काम करे, तो आपके पास उसके पास जाते हैं, आप उसको पैसे दे देते हैं, वो आपके बिहाफ में जाके लाइन में लग जाता है और जाके पेमेंट कर देता है जैसे कि वो बैंक में कर रहा होता है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ द सेम थिंग। इसको प्लीज़ उस थर्ड पार्टी से कंफ्यूज मत कीजिएगा जो आपके केस स्टडी के अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम्स की बात हो रही है, वो थर्ड पार्टी क्रेडिट सिस्टम्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो दीज आर सम एग्जांपल्स। तो इन्होंने मेजर प्लेयर्स का जिक्र किया हुआ है फिगर 5.16 के अंदर, और ये उसके अंदर एग्जांपल्स भी दिए हुए और ये डायग्राम बना के बताया हुआ कि 4 मेथडोलॉजीज इसको करने के। दैट्स प्रीटी मच द एंड ऑफ दिस वेरी वेरी शॉर्ट सेक्शन ऑन पेमेंट्स। अब दैट इज डज नॉट मीन दैट इट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो अगर आप सिर्फ पेमेंट्स तक के बात को सुनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बात ख़त्म है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात भी करना चाहें तो हम पीछे आपको जाना पड़ेगा एंड वील टॉक अबाउट सिक्योरिटी। अब मैं 5.1 के ऊपर पहुँचा हुआ। प्लीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर मेजॉरिटी जो सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है वो सारी डायरेक्टली आपके कोर्स से इस तरह रिलेट नहीं करती है। सो मोस्ट ऑफ द स्टफ इन दिस इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ जो कि शायद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा, और दैट्स अ कोर्स जो कि हम MIS के मेजर्स में पढ़ाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत आप लोगों के। लेकिन समझना इसको बहुत ज़रूरी है आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो ई कॉमर्स की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की या ई कॉमर्स सिक्योरिटी की, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी से कहीं ज़्यादा ऑनलाइन सिक्योरिटी मैटर करती है। ना सिर्फ जो ना आपके बैंक अकाउंट्स की चीज़ों की, बल्कि बहुत सारी वैल्यू की। फॉर इंस्टेंस पायरेसी ऑफ कोर्स इसेंशियली वो एक चोरी ही होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी होती है। इसी तरीके से आज के ज़माने में डेटा की चोरी बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। अकाउंट्स, लॉगिन्स, आपकी पिक्चर्स, आपका स्टोर्ड सारी मटीरियल, सब कुछ जो कि
कि आपने वेरियस क्लाउड स्टोरेजेस पे रखा हुआ होता है या वेरियस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे रखा, तो ये सब का सब आज के ज़माने में वनरेबल है एंड इट इज़ फार मोर ईजियर फॉर अ हैकर, लेस रिस्की टू एक्चुअली स्टील दिस काइंड ऑफ स्टफ. लेस रिस्की से मुराद मेरा ये मतलब नहीं है दैट इज ईजियर, इट्स जस्ट लेस रिस्की एज अपोज टू स्टीलिंग स्टफ फिजिकली. तो ये लेकिन ये कि दिस हैज़ बिकम अ बिग इशू. तो यहाँ पर वो ये जो स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम की वो ये बात कर रहा है कि कितना बड़ा इशू है. तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि रिसर्च इंडिकेट करती है कि तकरीबन $375 इन बिलियंस से लेके $575 बिलियन तक जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है साइबर क्राइम का और साइबर एस्पोनाज का. मतलब ये इतना बड़ा जो ना अमाउंट्स के अंदर बात हो रही होती है. एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जो कि करी है, उन्होंने सर्वे किए हैं मुख्तलिफ साइबर क्राइम का से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का. तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 20% से इंक्रीज़ हुई है 2015 से 2015 की स्टडी है. तो उन्होंने कहा तकरीबन 20% से इंक्रीज़ हुई है. आपको याद ही होगा कि पहले भी एक और भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिक्र हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका की वाली सिचुएशन का, डेटा जो चोरी कर रहे थे फेसबुक के थ्रू. तो दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल. पाकिस्तान में बहुत जगहों के ऊपर हो चुका है, डेटाबेसेस हैक हुए हैं, बैंक्स के डेटाबेसेस हैक हुए हैं और उस पर से फिर बहुत सारी जो ना लोगों के पैसे जो है डिडक्ट हुए स्किमिंग के थ्रू भी, ATM की मशीन्स के थ्रू. तो डेटा की सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और ख़ासकर ई-कॉमर्स के ज़माने के अंदर ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये अंडरस्टैंड करना हमें बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ नो लॉन्गर अ थ्रेट के जिसके बारे में हम इग्नोर कर सकते हैं उसको. सो बहुत सारे जो ना तरीके होते हैं अटैक्स के, बहुत सारे वेरियस किस्म की ई-कॉमर्स की सिक्योरिटी के अटैक्स हैं. आम लोगों के ख्याल में सिर्फ वायरसेस वो जानते हैं कि जी वायरस होता है, या उनको मालूम होता है कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पे चलते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस फाइल्स की फॉर्म में आते हैं एंड देन दे बिकम वायरसेस लेटर ऑन विच आर रेफर्ड टू एज ट्रोजन्स. ऐसे भी होते हैं कि जो कि ईमेल्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के साथ अटैच होकर स्प्रेड होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि जिनको जब आप रन करते हैं सिर्फ उसी वक्त स्प्रेड होते हैं. तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बॉम्ब्स. सो देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ थ्रेट्स दीस डेज. लेकिन जो अब वेब के होते हुए अब जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो एक तो ज़माने में तो हमारे पास सिर्फ ये वायरसेस वगैरह में होते हैं, लेकिन अब एक जनरल टर्म यूज़ होती है malware, which includes all these viruses and worms and all those. तो 97% तो तकरीबन अटैक्स वहाँ से आ रहे होते हैं. फिर उसके बाद वेब बेस्ड अटैक्स, चूँकि इंटरनेट का यूजेज अब बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस. वही इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, सारा काम ही हमारा उस पर हो रहा था. हेल्प हमारा कोर्स का नाम ही इसी से रिलेटेड ई-कॉमर्स, राइट. सो सबसे ज़्यादा तो हमारा फोकस ही उसी वेब बेस्ड पे ही होता है. सो वेब बेस्ड अटैक्स मुख्तलिफ किस्मों के उसमें क्लिक जैकिंग आती है कि जिसके अंदर आपको पेज एक दिखाएगा कि आप समझ रहे होंगे कि बटन दबाने से मैं नो कर रहा हूँ, कि एक्चुअली वो बैकग्राउंड के अंदर यस दब रहा होगा और आप अप्रूव कर रहे होंगे किसी चीज़ की अथॉरिटी और आपका डेटा चाह रहा है वहाँ पे. ये एक काइंड ऑफ अटैक होता है बाय द वे. तो देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ, जैसे बॉटनेट अटैक्स हैं, फिशिंग अटैक्स है. फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं कि एक वेबसाइट खुली, आपको ऐसा लगा कि ये फेसबुक का ही पेज है, या आपको लगा ये गूगल का पेज है या एप्पल आईडी का पेज है, और आपने अपने डेटा डाल दिया. आपके बैंक का पेज है, आप समझे हाँ बिल्कुल सेफ़ है, और आपने अपना डेटा डाल के दे दिया, और एक्चुअली वो पेज जो था वो फेक था. वो लग रहा था असली है, लेकिन वो जो लिंक था वो जिस वेबसाइट का, आप थोड़ा सा उसमें कोई फ़र्क था. और ये फिशिंग अटैक्स कहलाते हैं. तो फेक पेजेस के थ्रू ये आपका डेटा चोरी हो रहा होता है. इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग अटैक. सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद प्रोग्रामिंग. सोशल इंजीनियरिंग होती है कि जब आपको वो बातें कर करके या आपसे का ट्रस्ट लेकर आपको बेवकूफ़ बना कर डेटा ले. जैसे आजकल बड़ा कॉमन स्कैम है, पीपल मेक अ फ़ोन कॉल टू यू एंड दे प्रिटेंड कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ द मिलिट्री, और आपकी ये चीज़ें वेरीफाई करनी है, और आप धड़ाधड़ सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. या आपका फला इनाम निकला है, आप अपना NIC बता दें, आप अपना बैंक अकाउंट बता दें, तो हम आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे और आपको पैसे दे देंगे वगैरह वगैरह. दीज आर ऑल सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स. सो ये भी एक बहुत कॉमन हो गया. मैलिशियस कोड, कि किसी ने कोई प्रोग्रामिंग कोड ऐसा रन किया है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है, या आप चैटिंग कर रहे हैं उसके अंदर रन करता है, जो कि एक पीस ऑफ कोड जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जिस विच कॉजेज यू सिवियर सिक्योरिटी हैजर्ड्स. सो दीज आर वेरियस वेज इन विच होता है. ऑनलाइन का केस के अंदर क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है. एक और काइंड ऑफ बड़े कॉमन है वो की लॉगर्स होते हैं. की लॉगर बिल्कुल उसी तरह की चीज़ जैसे कार्ड स्किमिंग होती है ATM के ऊपर. कार्ड स्किमिंग ATM पे ये होती है कि आपके कार्ड को जब आप स्वाइप हो रहा होता है तो वो उसमें भी स्वाइप होकर वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है. या कैमरा लगा हुआ होता है अगर आपके कीपैड के ऊपर, तो आपके कीज़ की सीक्वेंस उसको पता है. तो बिल्कुल इसी तरीके से की लॉगर्स होते हैं. की लॉगर्स आदि सॉफ्टवेयर जो कि रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि क्या क्या कीबोर्ड के ऊपर प्रेस हुआ है. तो समबडी एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है थ्रू द इंटरनेट टू द अटैकर और द हैकर, विच मीन्स के आपका पिन कोड, आपकी वेरियस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ऑल ऑफ दैट, आपके पासवर्ड, सारा कुछ इसी तरीके से सेंड होकर वो दूसरे के हाथ में आ जाएगा.
और फिर वो ऑटोमेटिकली उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो एनीवेज, तो दीज आर सम अटैक्स। तो स्टोलन इन्फॉर्मेशन मिलती क्या है, बिकती क्या है, तो ये सारी डार्क वेब के ऊपर मिल रही होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हैकर्स जो हैं उसको बेच रहे होते हैं बाकायदा तौर पे। तो आपको क्रेडिट कार्ड्स की बिक रहे मिल रहे होते हैं। ऑनलाइन फोरम्स है कि जहाँ पर जो है लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स वो बेच रहे होते हैं कि जो कि अभी तक ब्लॉक नहीं कराए गए या जिनके ऊपर कोई इशू नहीं किया बैंक ने, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोगों के पासवर्ड्स इसी तरह से बिखरे पड़े होते हैं, मिल रहे होते हैं, यूज़र नेम IDs मुख्तलिफ सर्विसेज की, मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो लोगों ने लिए होते हैं। तो ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि हैकर्स जो है वो ये सारे चोरी करके तो वेरियस फोरम्स के ऊपर लगा देते हैं या बेचते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली सेल देम। उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। खैर, अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल भी देके बताया यहाँ पे टेबल 5.2 के अंदर, विच इज़ ऑन पेज 257, कि देयर इज यू नो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ एक्चुअली चार्ज फॉर स्टोलन डेटा। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि US कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर की, और साथ में CVV कोड जो 3 डिजिट का कोड होता है पीछे की तरफ, वो उसके साथ $5 से $8 का मिल रहा होता है। इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड नंबर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, नाम, बिलिंग एड्रेस वगैरह सब कुछ, वो ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि बहुत सही जगह पे पूरी डिटेल देनी होती है, तो वो पूरा $30 तक का भी पड़ता है। और इसी तरीके से कोई डेटा डम्प्स जो होते हैं जिसके अंदर US कार्ड के अंदर पूरी रॉ डेटा सारा, बहुत सारे कार्ड्स का, अगर आप मतलब एक साथ अगर अवेलेबल हो तो $110 से $120 का बिक रहा होता है। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस अकाउंट जब भी मैं बता रहा, जैसे नेटफ्लिक्स का अकाउंट, एप्पल iTunes का अकाउंट, गूगल म्यूज़िक का अकाउंट, किसी भी गेमिंग वेरियस गेमिंग अकाउंट्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो चोरी करके ये अकाउंट्स को इस तरीके से बेच रहे होते हैं। तो वो तकरीबन आपको पड़ते हैं $20 से $300 का। इसी तरीके से बैंक अकाउंट के डिटेल्स लोगों के फेसबुक IDs, ट्विटर IDs, ये सारी बिक्री होती है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ क्रेडेंशियल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ईमेल एड्रेसेस बेचे जा रहे होते हैं। पासपोर्ट के स्कैन्स बिक रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली बीइंग सोल्ड, और उनकी बाकायदा तौर पर मार्केट प्राइसेस हैं जिसके थ्रू लोग, जिस हिसाब से लोग उनके लिए पे कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं। सो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आया कि ये सब चीज़ें खुद मामूली चीज़ नहीं है और ये इशू बहुत बड़ा है। तो अच्छी E-कॉमर्स सिक्योरिटी क्या है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे अपने टीचर मुझे समझाया करते थे बात कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई बात करें हम क्या कि परफेक्ट सिस्टम या परफेक्ट सिक्योरिटी क्या है, तो उसका जवाब बड़ा आसान होता था, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यू कैन नॉट हैव परफेक्ट सिक्योरिटी बिकॉज यू हैव टू बैलेंस इट बिटवीन 3 थिंग्स: टाइम, दी रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्स में टाइम भी शामिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल रिसोर्स की बात करें, पैसा, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब कुछ, एंड सिक्योरिटी इटसेल्फ एंड द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मांगते हैं तो फिर टाइम और दूसरी रिसोर्सेज का मेजर सेक्रीफाइस होता है। और आप अगर आप कहते हैं थोड़ी सिक्योरिटी लूजन अप करें तो आपका टाइम भी थोड़ा बचता है, चीज़ें बचती है, तो आपको बैलेंस करना होता है इन तीनों में। तो कंप्लीट सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती, इट्स अ बैलेंस। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्टली सिक्योर सिस्टम, तो सच अ सिस्टम मीन्स के इट विल, ऐसा सिस्टम हो सकता है अगर आप उसको जो ना मट्टी के नीचे दबा दें और उसको टाइटेनियम में बंद रखें और उसको किसी नेटवर्क से कनेक्ट करें, तभी हो सकता है। क्योंकि इवेंचुअली आप चाहे कितने अच्छे सिस्टम है, इवेंचुअली कोई ना कोई उसको तोड़ ही लेगा, हैक कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि परफेक्टली सिक्योर। हाँ, यू कैन मेक इट हार्ड इनफ फॉर समवन टू ट्राई एंड ब्रेक इनटू दैट सिस्टम, कि ताकि उसके इतने रिसोर्स लग जाए, इतना टाइम लग जाए कि फिर वो उसके लिए मीनिंगलेस हो जाए। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर यहाँ पे अब वो बात करेगा सिक्योरिटी, यहाँ पर उसने बात की E-कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात की, तो सबसे एक उसने डायग्राम बना के अब कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए। यहाँ पर उसने सबसे सेंटर पे डेटा है, पे टेक्नोलॉजी, उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के वेरियस टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट की जाती हैं, और फिर ऑफकोर्स लॉज, रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं। मैं फिर ये दोहरा दूँ कि ये चैप्टर एक्चुअली टेक्निकल है और आपके कोर्स का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन इसको अगर सही डिटेल में आपने पढ़ना है तो यू नीड टू एक्चुअली स्टडी होल डेडिकेटेड कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो आई एम ओनली ट्राइंग टू कवर ऑल द स्टफ दैट इज़ इन द बुक, जो कि बहुत ब्रीफ और बहुत ही नॉन टेक्निकल जितना कि कर सकते तो वो बता रहे हैं। खैर, फिर हम आते हैं बात के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ E-कॉमर्स सिक्योरिटी, विच इज़ ऑन पेज 259। नाउ इसको मैं दोनों सूरतों से बताता हूँ, इस बुक से भी और वैसे भी मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सिक्योरिटी के लिए, उनकी एब्रीविएशन बनती CIA, विच इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। एक साहब थे जिनका नाम पार्क था, समथिंग पार्क, मैं अभी फर्स्ट टाइम उसका बोल रहा हूँ। उसके नाम पे एक 6 चीज़ें जो आइडेंटिफाई होती हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए उस सेट ऑफ थिंग्स को पार्केरियन हेक्सैड कहते हैं। हेक्सैड इज़ लाइक 6, ठीक है, जैसे ट्रियो होता है ऐसा हेक्सैड होता है। ट्रियो इज़ 3, तो CIA इज़ अ ट्रियो of security principles or security requirements, while the Parkerian hexad 6 है।
तो पार्किन एग्जैक्ट में CIA तीनों होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, साथ में इसके यूटिलिटी होता है, ऑथराइजेशन होता है और नॉन रिप्यूडिएशन भी होता है। तो ये 6 के 6 मिलके जो है वो पार्किन एग्जैक्ट बनते हैं। यहाँ आपकी बुक जो बात कर रही है वो कहती है कि देयर आर डायमेंशंस ऑफ ई-कॉमर्स सिक्योरिटी, और उसमें उसने जिक्र किया है नॉन रिप्यूडिएशन का, इंटेग्रिटी का और ऑथेंटिकेशन का, साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी का, प्राइवेसी का और अवेलेबिलिटी का। ठीक है, तो ये इस बुक के मुताबिक है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक दिस आर लाइक 1 2 3 4 5 and 6। अगेन ये भी वही 6 की बात कर रहा है, नाम थोड़े से डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द वन जो कि सबसे ईजीली हमारे लिए समझना बड़ा आसान है, दैट्स नॉट इंटेग्रिटी। सबसे आसानी से समझ में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मैं इसके बाद अब ये सिक्योरिटी की बात आएगी तो बार बार वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा मैसेज। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैसेज से मुराद यहाँ पे चैट मैसेज नहीं है, मैसेज से मुराद है एनी पीस ऑफ डेटा जो कि सेंड और रिसीव किया जा रहा हो। इट कुड बी अ फाइल, इट कुड बी म्यूजिक फाइल, इट कुड बी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इट कुड बी आइटम्स दैट यू आर परचेजिंग, इट कुड बी डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, इट कुड बी योर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकती है। मैसेज से मुराद है डेटा दैट बीइंग सेंट बिटवीन टू पार्टीज और टू ग्रुप्स और टू मशीन्स और टू पीपल। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो या सबसे ईजी टू अंडरस्टैंड जो सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है कि सिवाय उन लोगों के जो कि ऑथराइज्ड टू सी हैं उस चीज़ को, और किसी को एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो देख सके कि क्या मैसेज भेजा गया है बिटवीन दोज टू पार्टीज। ये कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसी से मिलता जुलता आपको लगेगा प्राइवेसी, लेकिन प्राइवेसी ये नहीं है। प्राइवेसी इज़ के द एबिलिटी टू कंट्रोल के उस इंफॉर्मेशन को कौन यूज़ कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अबाउट कि मेरे बारे में मेरी इंफॉर्मेशन वो मैं डिसाइड करूँगी कौन देख सकता है और कौन नहीं। मेरी ट्रांजैक्शन जो है, मेरा जो मैसेज है, ये मैसेज भेजा भी गया था नहीं भेजा गया था, ये मैसेज ऐसे को भेजा गया इन दो के दरमियान, ये इन्फॉर्मेशन भी प्राइवेट होनी चाहिए। प्राइवेसी की बात हो रही है। सो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी दो अलग अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंशियलिटी आप इसको भी समझ लें कि कॉन्फिडेंशियलिटी टॉक्स मोर अबाउट कि जो कंटेंट ऑफ द मैसेज है वो सिक्योर होना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए किसी को। प्राइवेसी इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दैट फैक्ट इज़ वेल, कि वो भी छुपी हुई होनी चाहिए। एनीवेज, फिर हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद जो समझने लोगों के लिए आसान होता है, वो होता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि जो मैसेज भेजा गया है बिटवीन दोज टू पार्टीज, या भेजा जा रहा है, वो चेंज ना हुआ, वो टैम्पर ना हुआ हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हुई हो, किसी ने उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करके तब्दील ना किया हो, ये इंटेग्रिटी है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑथेंटिसिटी का, और उसी से रिलेटेड है ऑथराइजेशन का। ठीक है, ऑथेंटिसिटी ये होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप हैं कौन, और अगर और ये चीज़ और ये कि वेरीफाई करवाएं कि आप वही हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आप हैं, ये ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, ऑथराइजेशन इससे रिलेटेड इस तरह के वेदर यू आर अलाउड टू डू समथिंग और नॉट, ये ऑथराइजेशन के ज़ुमरे में आता है। सो ऑथेंटिकेशन इससे ज़्यादा कि आप आइडेंटिफाई करें, ऑथराइजेशन आता है कि आपको ये चीज़ काम करने की या ये मैसेज भेजने की या ये रिसीव करने की इजाज़त है या नहीं। फिर आता है कॉन्सेप्ट नॉन रेप्यूडिएशन का। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई, अब हम चूँकि ई कॉमर्स की बात करें, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या जब भी कोई मैसेज रिसीव या सेंड हो रहा है, तो दोनों या तीनों जितनी भी पार्टीज उनमें इन्वॉल्व हैं, उनमें से कोई भी ये डिनाई ना कर सके कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पे बायर ने सेलर को पैसे भेजे, सेलर डिनाई कर दे, नहीं मुझे तो रिसीव ही नहीं हुआ, मैं तो कैसे प्रोडक्ट भेज दूँ, कह रहे भाई मैं पैसे दे चुका हूँ। तो ये नॉन रेप्यूडिएशन की जिम्मेदारी होती है, ये इस पार्ट की काम होता है जो ये डील करे कि ये डिनाई ना कर सके पार्टी को, उसके पास एविडेंस मौजूद है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। फिर जिक्र मैं कर रहा था अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी ये कि जो वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो सर्विस है, वो एक्सेसिबल हो एट ऑल टाइम्स, रिलायबली एक्सेसिबल हो बाय ऑल द पार्टीज, द बायर्स एंड द सेलर्स एंड एवरीबडी। तो वो सर्विस या वो वेबसाइट वो एक्सेसिबल हो। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टेबल 5.3 के अंदर ये जो टेबल, आई वुड रिकमेंड कि आप इस टेबल को पढ़ लें बजाय इसके पूरे टेबल के अंदर उसने एक्सप्लेन किया है कि इंटेग्रिटी क्या होती है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से इंटेग्रिटी क्या होती है, मर्चेंट क्या होती है। सो लेट्स लुक एट दैट। इंटेग्रिटी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से होती है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने भेजी है वो ऑल्टर तो नहीं हुई है, और मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगी कि वो जो डेटा जो मुझे जो मेरे वेबसाइट पे आया है, कहीं वो किसी ऐसे बंदे ने तो चेंज नहीं किया कि जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको ऑथराइजेशन नहीं है इसको तब्दील करने की, या उसको एक्सेसिबल तो नहीं है। नॉन रेप्यूटेशन, क्या
जो भी शख्स मुझसे मेरे साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्ट कर रहा है वो डिनाई तो नहीं कर देगा कि उसको कि ऐसा तो उसने किया ही नहीं था, पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई थी, चीज़ मांगी ही नहीं थी, ये प्रोडक्ट तो आपने बुक कराई ही नहीं थी। सो ऑन द मर्चेंट पर्सपेक्टिव कि क्या कस्टमर डिनाई कर सकता है, नहीं मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं था, आपने ऐसे कैसे भेज दिया, मैं तो कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं दे रहा, आपने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। तो ये नॉन रिपीटेशन आ गए। फिर आते ऑथेंटिसिटी की गारंटी के जो सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रही है कि हम रिलायबल हैं, क्या वो वाकई में वो कैसे साबित कर रही है कि वो यही है। हाउ इज़ गूगल प्रूविंग दैट दे आर गूगल, हाउ इज़ माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट और आउटलुक्स लॉगिन पेज प्रूविंग दैट इट्स आउटलुक। अब आप पूछेंगे नहीं है तो हमें भी नहीं पता चल सकता है, नहीं जनाब ऐसा नहीं होता, या आपका ब्राउज़र के वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। तो इसी तरह मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से क्या कस्टमर की जो आइडेंटिटी वो दे रहा है, जो हमें बता रहा है, क्या वो वाकई में वही है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या है कि क्या कोई और शख्स जिसको ये मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए वो भी मेरे मैसेज पढ़ रहा है, वो भी मेरी मैसेज, अभी फिर बता रहा हूँ मैसेज चैटिंग ऐप मैसेज की बात नहीं हो रही है, मैसेज से मुराद है एनी डेटा दैट्स बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड। ठीक है, ये आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी। मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से क्या वो मैसेजेस जो कॉन्फिडेंशियल है डेटा वो किसी और को जिसको ऑथराइजेशन नहीं वो तो नहीं देख रहा है। प्राइवेसी, क्या मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं सेंड करूँ या ना करूँ। मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब ये जो मैं पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ क्या इसका कोई मकसद है भी नहीं है, नहीं क्या मैंने लोगों से इजाज़त ली है कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी, क्या वेबसाइट कस्टमर के पर्सपेक्टिव क्या वेबसाइट अवेलेबल है, मर्चेंट के पर्सपेक्टिव क्या वेबसाइट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, इज़ इट वर्किंग राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पर जो मैं भी शुरू में जिक्र किया था कि सिक्योरिटी तीन इज़ लाइक अ ट्रायंगल, यू हैव टू ट्रेड इट ऑफ बिटवीन टाइम, रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स मनी एंड HR एंड एवरीथिंग एंड सिक्योरिटी। सो यहाँ ये हेडिंग की बात करता है रिटेंशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड अदर वैल्यू। सबसे पहले उसने बात की ईज़ ऑफ यूज़ की, और आप चीज़ को बहुत सिक्योर बना देते हैं, मिसाल तौर पर बहुत टफ पासवर्ड बना देते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद रखना, डिफ़िकल्ट होता है टाइप करना। ठीक है, तो आप बहुत सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ईज़ ऑफ यूज़, आपको उसको इस्तेमाल करने की भी जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है ना, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा फिर आपके पास आता है पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सिक्योर सिस्टम बनाएंगे तो उतना ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, उतना ही टाइम भी लगेगा, अगेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर आता है पब्लिक सेफ्टी एंड क्रिमिनल यूजेस ऑफ द इंटरनेट की एक हेडिंग की बात की हुई है। अगेन यहाँ पे लॉज लीगलिटीज़ की बात हुई है कि क्यों किस तरह से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इंटरनेट को वेरियस क्राइम्स के लिए यूज़ हो सकता है। आप डेटा फ्रॉड भी कर सकते हैं, लोग आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे होते हैं, लोग चीज़ें जो है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको चोरी करके बेच रहे होते हैं। तो दोज आर सम एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं इन द ई-कॉमर्स इन्वायरमेंट। लेट्स लुक एट दैट। सो किसी भी टिपिकल ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन को अगर हमने समझना है तो फिगर 5.2 के अंदर समझाया है उन्होंने, ये बिल्कुल उसी तरह से समझाया जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन के थ्रू समझा रहा था। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद एक डेटाबेस के अंदर सेव भी हो रहा है, वो तो मर्चेंट की वेबसाइट पर हो ही रहा है, लेकिन वो वेयर हाउस को डायरेक्टली भेज देता है इंफॉर्मेशन कि जी ये सामान शिप कर दीजिए, या ये सामान को आके कस्टमर आपके पास से पिक कर लेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये एक इतना सा फ़र्क है, वरना जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम का जो मेथोडोलॉजी है वही यहाँ पर उन्होंने शो की हुई है आपको। सो दो आर सम एग्जांपल्स दैट ऑफ एनी टिपिकल ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब कहाँ पे ख़तरा कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा ख़तरा जो है एक चीज़ जहन में बिठाइएगा, सबसे ज़्यादा ख़तरा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से या ई-कॉमर्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब होता है तो वो डेटा की मूवमेंट के दौरान होता है। रखा हुआ डेटा, किसी जगह स्टोर डेटा फिर भी निस्बतन सिक्योर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उस सिचुएशन में होता है, और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हैज़ार्ड उस सिचुएशन में होता है कि जब वो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, इन द फॉर्म ऑफ द डेटा दैट इज़ बीइंग सेंट। ठीक है, उस फॉर्म में जब वो मौजूद होता है तो उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल देके आपको इसी डायग्राम का एग्जांपल देके बताया कि वाईफाई के ऊपर कोई हो सकता है आपका जहाँ पे कनेक्टेड है वो आपका वाईफाई को हैक करा हुआ है और जो डेटा निकाल रहा है उसमें से। ठीक है, हो सकता है अगर हम बात करते हैं आपकी इशूइंग बैंक की, तो हो सकता है कि आपके इशूइंग बैंक के ऊपर कोई अटैक करे, वहाँ से हैक कर ले और पैसे आपके चोरी हो जाएं। फिर किसी न किसी किस्म का सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड।
कि जहाँ पर अब मर्चेंट बैंक और आपके जो बैंक के दरमियान की कम्युनिकेशन का है। इसी तरीके से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जब आप मौजूद होते हैं, आप ऐड टू कार्ट वगैरह करो तो हाँ हैक हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत दिए हुए कि जिसके अंदर वेरियस केसेस के अंदर जो हैकर था वो एक्चुअली जो था वो पार्ट था सिस्टम का। से फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वेरियस बैंक्स के केस में इस तरह से होता है कि जो बैंक के अपने ही एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्किम कर रहा था। आई थिंक HBL का था, एक इसका था जिसके केस में इस तरह हो चुका है कि जो बैंक के लोग थे वो खुद इन्वॉल्व थे। सो वो एक एग्जांपल है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्रीचेस की एक और बात हो रही है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है कि हैकर्स जो हैं वो आपकी बैंक की सर्विसेज को डाउन कर देते हैं, हैक कर ठीक है, उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है। सो दैट्स एन एग्जांपल। फिर आपके पास जब हम वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वेबसाइट के ऊपर फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स चोरी हो सकती हैं, डेटाबेसेस को एक्सेस किया जा सकता है। डेटाबेस पे अटैक यूजुअली जो किया जाता है वो कहलाता है SQL इंजेक्शन। SQL बाय द वे वो लैंग्वेज है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके आप डेटा रिट्रीव करते हैं या स्टोर करते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। सो उस SQL को यूज़ करते हुए भी, क्योंकि लैक ऑफ सिक्योर सिस्टम्स होता है, लैक ऑफ प्रॉपर प्रोग्रामिंग होता है कि वीकनेसेस की वजह से आप ये होता है कि आप SQL की फॉर्मेट को किसी तरीके से इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट डेटाबेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप SQL को यूज़ करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अगर वो आपके डेटाबेसेस से कनेक्टेड है तो आपके पास इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। यू कैन कॉज इट टू you can even cause it to break down using such SQL key queries. SQL is not a bad language, it's actually a very useful thing. In fact, आप database का कोई काम भी बगैर उसके नहीं कर सकते, but this is an example of where the SQL is being used to cause irreparable damage by stealing your data or even money or whatever. शिपिंग के दौरान ऑफकोर्स एक सिक्योरिटी हैजर्ड है, वो तो पूरा सामान ही चोरी होने का एक्सेस है। तो दोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने जिक्र किया मैलिशियस कोड का। अब ये बहुत डिटेल में जाएगा यहाँ पे टेक्निकल। तो यहाँ पर इसने बात की मैलिशियस कोड की, विच इज़ एनी पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड जो कि डैमेज आपको कॉज कर सकता है। मैलिशियस कोड जो वर्ड है, मैलिशियस का वर्ड ही एक्चुअली जो है वो मेलवेयर में इस्तेमाल होता है ना वर्ड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस से मुराद यहाँ पर है कि वो आपके लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि एक्सप्लॉइट किट है। दोज आर सम एक्सप्लॉइट्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट के पार्ट के साथ सेल किए जा रहे होते हैं। आप समझते हैं ये सॉफ्टवेयर है और ये मेरे तो इस्तेमाल के लिए, और उसका ही अंदर कोई कोडिंग ऐसी होती है जो कि आपको डैमेज करती है। तो अक्सर हमारे पर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस तरह से होता है कि दोनों ऐप स्टोर्स के ऊपर, एप्पल पे भी ये भी और गूगल के भी, बहुत सी ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स होती हैं, जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होती है, लेकिन वो वेरियस सिक्योरिटी चेक्स में से बच जाती हैं या नहीं चेक हुआ होता तो वो कॉज कर सकते हैं आपको डैमेज। मैलिशियस एडवर्टाइजिंग या मैल एडवर्टाइजिंग में कि जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है कि इसको आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो कोई कोड रन कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ड्राइव बाय डाउनलोड भी हो सकती है। तो ऐसा मेलवेयर है कि जो कि अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड की रिक्वेस्ट करी, जो अक्सर लोग करते हैं, लोग कोई किताब ढूंढने के लिए ऑनलाइन जा रहे होते हैं और उनको एक वेबसाइट पे मिल जाती है, समझते हैं किताब है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। दैट कॉजेज़ यू डैमेज। तो या वेरियस किस्म के सॉफ्टवेयर्स चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस फिल्म्स वगैरह जो देख रहे होते हैं स्ट्रीमिंग के ऊपर, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो अक्सर कहता है नहीं जी इसको चलाने के लिए ये मीडिया प्लेयर चाहिए वगैरह, और लोग झट से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अक्सर औकात उनके वो मैलिशियस कोड उसी के थ्रू रन हो रहा होता है। फिर ऑफकोर्स सबसे कॉमन हमारे वायरसेस हैं। वायरसेस वो प्रोग्राम्स के जो कि अपनी कॉपीज़ बनाते हैं कि जब उनको आप रन करते हैं। ठीक है, सो दोज आर सम एग्जांपल्स। वॉर्म्स ये कि जो कि एक कंप्यूटर दूसरे में स्प्रेड हो रहा होता है, इवन व्हेन जब आपने उसकी जो है उसको रन नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर रन करे भी स्प्रेड हो जाता है ओवर द नेटवर्क। रैंसमवेयर ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की मैलिशियस कोड होता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर वो कोड आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, ये तो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोलॉजी नहीं जी, कॉन्सेप्ट वही है, क्रिप्टोग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि रैंसमवेयर के केस के अंदर ये सारी जो फाइल्स होती हैं आपकी वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, पिक्चर्स की, उनको इनक्रिप्ट कर देता है। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अक्सर लोगों के पास लिंक्स के अंदर ईमेल्स के थ्रू आ रहे होते हैं, वेरियस फाइल्स के थ्रू आ रहे होते हैं, तो ये इनक्रिप्ट कर देता है। और फिर उसके बाद जो नाम से पता चल रहा है रैंसमवेयर, तो आपके डेटा का अगवा हो जाता है बेसिकली, अगवा बराए तावान। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक सर्टन अमाउंट वो आपकी सारी इनक्रिप्ट हो जाएंगी और यूजुअली एक फ़ाइल बन जाएगी और उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि फला एड्रेस के ऊपर पैसे भेज दीजिए, फला अकाउंट पे भेज दीजिए, फला बिटकॉइन एड्रेस पे भेज दीजिए, तो ये हम रिलीज़ करेंगे। और
वरना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो गई है, वरना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हिडन हो गई है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ हुआ है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। दे कैन आस्क फॉर अप टू लाइक 50,000 और 100,000 30,000, बहुत ह्यूज अमाउंट्स ये मांग रहे होते हैं। सो आज के ज़माने में सबसे ख़तरनाक मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी हैज़र्ड है वो रैनसमवेयर है। पूरा डेटा आपका जो है वो हैक हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, सॉरी, क्रिप्टोग्राफी की वजह से। और आप बहुत केस में ऐसे भी होते लोग पे भी कर देते फिर भी वो डिक्रिप्ट नहीं करके देते, जिन्होंने रैनसम किया हुआ था वो डिक्रिप्ट कोड नहीं देते। सो दैट्स वेरी डेंजर। फिर ट्रोजन हॉर्स के नाम से एक सिक्योरिटी का एक ब्रीच और एक सिक्योरिटी हैज़र्ड है। उसमें क्या होता है कि फ़ाइल जो कि बिल्कुल बेज़र दिख रही होती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन एक्चुअली वो वायरस उसमें हिडन होती है, मैलिशियस कोड हिडन होता है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। साथ में कोई गेम हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जो कि डिस्गाइज हुई भी कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, और आप उसको रन करते हैं एंड इट कैन कॉज यू योर सिस्टम अ लॉट ऑफ डैमेज। देन देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट या सिक्योरिटी का एक समझ लीजिए एक वीकनेस है या एक सिस्टम का पार्ट है। वो क्या है, वो कह रहा था बैकडोर से क्या होते हैं कि वेरियस केसेस की वजह से प्रोग्रामर्स जो हैं क्या करते हैं कि ईजियर एक्सेस अपने लिए सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं, तो वो बैकडोर्स रखते हैं, वेज दैट इन विच दे कैन देमसेल्व्स एक्सेस द सिस्टम क्विकली। तो ये बड़ा डेंजरस होता है क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द वे थ्रू विच वेरियस मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके ऊपर अटैक करते हैं। फिर आते हैं बॉट्स आप याद रखिएगा, आपको याद बताया भी था कि सॉफ्टवेयर एजेंट्स को कहते हैं, एनी पीस ऑफ कोड जो कि आपके बिहाफ पे काम करता है। सो टिपिकली जो कर रहे होते हैं बॉट्स, वो क्या करते हैं कि वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे, और फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद जिसने भी इंस्टॉल करवाया, जो हैकर है, जो अटैकर है, वो फिर उन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम में वेरियस चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बॉट्स जो है वो मैलिशियस बॉट्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। दे कैन एक्सेस योर सिस्टम, दे कैन एक्सेस योर इनपुट डिवाइसेस, दे कैन एक्सेस वेरियस थिंग्स। बड़े आराम से एक डिस्टेंस पे बैठ के हैकर जो आपके सिस्टम को कम्प्लीटली हाईजैक कर लेता है और कंट्रोल कर रहा होता है। बॉटनेट जो है वो बेसिकली इज़ द वर्ड यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ कैप्चर्ड बॉट कंप्यूटर्स, यानी कि वो कंप्यूटर्स के जिसके ऊपर आपके बॉट इंस्टॉल हो गया है और वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उनको अब आप एक्सेस कर रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो बॉटनेट कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है वेरियस एग्जांपल्स की कि जहाँ पर वेरियस किस्म का मैलिशियस कोड जो है वो रन हुआ, या कोई रैनसमवेयर था उसने कॉज किया डैमेज, कोई वायरस था उसने किया डैमेज। तो ये बड़ी अच्छी लिस्ट है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। तो दिस इज टेबल 5.4। जैसे यहाँ पे जिक्र किया उन्होंने रैनसमवेयर का, जो सबसे ख़तरनाक है, मशहूर है इस वक्त, वो क्रिप्टो लॉकर है। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। फिर आते हैं हमारे पास पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम। पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम वो होते हैं कि जो कि एक्चुअली मैलिशियस तो नहीं होते हैं, लेकिन ये लग रहा होता है सिस्टम को, एंटीवायरस को, कि हाँ शायद ये नुकसानदेह हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हों, लेकिन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बेज़रर हो इन द सेंस कि वो आपको सिर्फ थोड़ा सा तंग करें, साथ आप ऐड दे के बार बार तंग करें, तो एडवेयर होता है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर कोई उसके अंदर सेटिंग चेंज कर दे, मिसाल के तौर पर आप सर्च कर रहे हो तो गूगल के ऊपर वो सर्च कहीं और जारी होती है। दैट्स बिकॉज आपके पास कोई ऐसा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका होता है जो कि अब आपकी सारी सर्च क्वेरीज को कहीं और सेंड कर रहा होता है। तो ये छोटी सी चीज़ होती है, बड़े आराम से सेट हो जाती है, जाके चेंज हो सकती है, लेकिन ये कि दिस इज़ समथिंग जो कि लोग अनॉय करती है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द पोटेंशियली पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स। फिर हमारे पास जैसे एक और एग्जांपल है पोटेंशियली अनवांटेड का, वो होता है ब्राउज़र पैरासाइट, कि जो कि आप सॉरी अभी बताया वो ब्राउज़र पैरासाइट का। फिर दूसरी ऐसी होती है जो स्पाईवेयर होती है। वो क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी वेरियस बिहेवियर इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चोरी कर रही होती है बगैर आपके कंसेंट के, बगैर आपके परमिशन के। फिर आपको मैंने जिक्र किया था सोशल इंजीनियरिंग का, कि जिसके अंदर वो लोगों को और लोगों से बात करके और उनकी बातें कुरेद कर इन्फॉर्मेशन निकालना, वेरियस किस्म की उनकी इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको यूज़ करते पासवर्ड। जैसे लोगों ने अपनी हस्बैंड्स की या वाइफ्स की पिक्चर लगाई हुई है तो या नाम लिखा हुआ है, तो अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक गेट एन आइडिया कि हाँ हो सकता है इसने पासवर्ड भी इसी नाम से लिखा हो। सो दे आर गोइंग टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन टू ट्राई डिफरेंट पासवर्ड्स। तो उनमें से एक ये तरीक़ाकार हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग का। या आपको कहा कि यार कोई मसला नहीं है, तुम अपनी यूज़र नेम पासवर्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेहाफ पे लॉगिन कर दूंगा। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स या वेज टू स्टील इन्फॉर्मेशन। फ़िशिंग का मैंने आपको बात कही थी कि फ़िशिंग इज़ बेसिकली टर्म के जिसके अंदर आप जो हैं वो जो हैकर्स होते हैं वो एक मिलता जुलता पेज बनाकर या मिलती जुलती क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का लॉगिन का जो पॉपअप मेन्यू आ रहा होता है या एक मेन्यू आ रहा होता है या एक बार आ रहा होता है, फील्ड आ रही होती है जिसमें आप डाल रहे होते हैं, ये तमाम को प्रेजेंट करना एज इफ़ कि रियल है, लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और जा रही होती है। ये सारा फ़िशिंग की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है।
फिर हमारे पास यहाँ पे जिक्र है हैकिंग, साइबर वैंडलिज्म और हैक्टिविज्म का। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बार बार यहाँ बुक में भी क्लियरली मौजूद है। हैकर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं कि जो कि एक्चुअली वाइट हैट हैकर्स भी कहलाते हैं, वो जो कि आपके सिस्टम को हैक करके आपको एक्सेस करके बता रहे होते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है। यहाँ किताब में भी हैकर का टर्म जो है उन्होंने एज अ नेगेटिव टर्म यूज़ किया हुआ है, जबकि हैकर जनरली वाइट हैट हैकर को रेफ़र कर रहे होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सारे हैकर्स एक्चुअली नुकसान करना चाह रहे होते। कुछ ये करते कि सिस्टम को की वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हैक करके शो करते कि देखिए ये आपकी वीकनेस थी तो मैंने ये हैक कर पाया। फिर उसके बाद हमारे पास क्रैकर जो होता है। क्रैकर इज़ अ ब्लैक हैट हैकर और अ पर्सन जो कि बाकायदा तौर पे सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना चाह रहा होता है, चाहे फेम के लिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे कोई और तरीका, तो वो क्रैकर कहलाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर बात हुई साइबर वेंडलिज्म की। साइबर वेंडलिज्म ये कि आपने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली, किसी कॉर्पोरेशन की, किसी की यूज़र नेम आईडी ले ली, किसी की वेबसाइट जाके हैक करी और उसको जाके ख़राब कर दिया। तो अक्सर इंडिया पाकिस्तान आपस में ये साइबर वॉरफेयर के केस में वेबसाइट से एक दूसरे की हैक करके जो है ना उनको मॉडिफाई किया जा रहा होता है। या आप समझ लीजिए जो एक और बड़ा कॉमन एक नया साइबर वैंडलिज्म है, लोगों के विकिपीडिया पेजेस को जब एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिंग हो या पॉलिटिकल ओपिनियंस हो तो एक दूसरे की विकिपीडिया के पेजेस जाकर जो है ना, या उनके फॉलोअर्स जाकर विकिपीडिया के पेजेस को जो है वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो दैट ऑब्वियसली is dangerous and it's actually bad because it's usually bad for public relations, especially in the case of websites. So that's called cyber vandalism. ठीक है, फिर यही वही बात हुई जो यहाँ पे आ गया पेज 273 के ऊपर, वाइट हैट की, विच इज़ लाइक गुड हैकर्स जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके। राफी बलूच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइट हैट हैकर्स इन द वर्ल्ड, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का ही ग्रेजुएट है। सो दैट्स अ वाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो कि हैक करके आपको सिर्फ नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। ग्रे हैट्स वो होते हैं कि वो हैकर्स के जो कि यहाँ पे उसको वो ग्रे हैट बोल रहा है, लेकिन टेक्निकली वो वाइट हैट ही होते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो हैक करके आपके सिस्टम की वीकनेस जो है आइडेंटिफाई करके आपको बता रहे होते हैं, आइदर फॉर मनी और जस्ट फॉर फन। सो राफी बलोच इज़ वन ऑफ दोज पीपल who actually did that in the case of Google. He did that in the case of पेपैल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। गूगल क्रोम के अंदर भी निकाली उसने, गूगल से मुराद मेरी गूगल क्रोम थी, और पेपैल पे निकाली थी, और एक और भी कोई एक दो बड़ी फेमस वेबसाइट्स थी कि जिसके अंदर उसने इसी तरीके से वाइट हैट हैकर होने के नाते हैक करके उसकी सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई की थी। डेटा ब्रीच क्या होता है कि जब हैक हो और आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो तो वो डेटा ब्रीच कहलाता है, स्टील हो जाता है। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स या थेफ्ट्स आपको जिक्र किया ही था। एक तरीका है कि आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो जब ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द रिसिपिएंट, द कस्टमर कंप्यूटर, वहाँ उस दौरान में जो है वो डेटा स्टील हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, या किसी डेटाबेस पे स्टोर्ड है, किसी कंप्यूटर पे स्टोर्ड है और कोई हैकर का एक्सेस उस तक पहुंच जाता है, तो वो डेटा वहाँ से वो उठाना शुरू करता है, वो सारा डेटा ब्रीच है। फिर आती है आइडेंटिटी फ्रॉड, जो कि बड़ा कॉमन हो गया आज के ज़माने में सोशल नेटवर्क्स के होते हुए ख़ास तौर से। आइडेंटिटी फ्रॉड इस के आपकी वेबसाइट पे, आपकी प्रोफाइल पे, या आपकी किसी न किसी जो आपको रिप्रेजेंट करती है ऑनलाइन, वो इन्फॉर्मेशन किसी तरह से किसी और के हाथ लग जाए और फिर वो आपके ही नाम से बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक नई आईडी क्रिएट कर लें, एक नई वेबसाइट क्रिएट कर लें, यानी कि अदरवाइज आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को हाईजैक कर लें और उसके थ्रू बेसिकली फिर फ्रॉड करें आपके बिहाफ पे, आपके नाम का बनाकर। वेरियस ब्रांड्स, वेरियस कंपनीज एक्चुअली जो है वो ये कर भी रही होती हैं। आपको अक्सर जो कहते हैं मी टू प्रोडक्ट्स जो आते हैं या जो फेक प्रोडक्ट्स आते हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो सब एक्चुअली आइडेंटिटी फ्रॉड का एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास है स्पूफिंग, फार्मिंग एंड स्पैमिंग। स्पूफिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आप कुछ और दिखा रहे होता कुछ और दिखा कुछ और रहे होते हैं, तो आप किसी और का ईमेल एड्रेस दिख रहा है कोई और है, लेकिन वो ईमेल कहीं और जा रही है। वेबसाइट देखने में लग रहा है कि बिल्कुल लेजिटिमेट, लेकिन वो सारी रीडायरेक्ट हो रही है कहीं और। ये सारी आती है कैटेगरी स्पूफिंग के अंदर, सॉरी। फिर हमारे पास आती है स्पूफिंग की बात फार्मिंग। अब यहाँ फार्मिंग PH से लिखा हुआ है, F से नहीं। फार्मिंग इज़ बेसिकली द थिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस है जो मौजूद है वो मिलता जुलता रखा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली वो नाम डिफरेंट होगा। जैसे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप के ऊपर भी हो रहा था कि वो लिखा हुआ था जी अब ये व्हाट्सएप का एक लिंक है और ये अपडेट आपने यहाँ व्हाट्सएप का डालने हो, जबकि आपको गौर से उसको देखते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं उन्होंने पकड़ा कि एक्चुअली उस लिंक के अंदर जो ए बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, वो ए नहीं है, वो एक्चुअली कोई और सिंबल है। तो ये जो एड्रेस ये है ही कोई और वेबसाइट का एड्रेस। तो ये सारी जो चीज़ें ये आती हैं आपकी फार्मिंग के अंदर।
फिर स्पैमिंग या जंक वेबसाइट्स, वो वेबसाइट्स जो कि आपको कचरा भेज रही होती है, जंक भेज रही होती हैं, एड्स बहुत ज़्यादा भेज रही होती है, ये सारी उस कैटेगरी में आती है। स्निफिंग एंड मैन इन द मिडल अटैक, स्निफिंग जो होती है या स्निफिंग अटैक्स जो होते हैं इट्स बेसिकली दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस कि जिसके अंदर आप कोई ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ करें, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें इसके अंदर जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो आप उसको बीच में से उठा रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये स्निफिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखिए, ईव्स ड्रॉप करने का होगा प्रोग्राम या टूल की जिसको आप नेटवर्क पर रखा हुआ और आप उसको इस्तेमाल करके बीच में से इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। मैन इन द मिडल अटैक्स जो नहीं वो तमाम इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैन इन द मिडल अटैक्स को मुराद होती है कि दोनों सिस्टम जब कम्युनिकेट करें उसके बीच में एक थर्ड पार्टी कोई आ गई है, कोई बंदा आ गया है और उसको एक्सेस कर रहा है और फिर उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहा है, तो ये कहलाता है मैन इन द मिडल अटैक्स। सारे इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। तो यूज ड्रॉप बट इंस्टेड ऑफ जस्ट ईव्स ड्रॉपिंग, स्निफिंग की खास फॉर्म है कि स्निफिंग करने के बजाय एक्चुअली आप चेंजेस कर रहे होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे होते हैं, उसको उसकी इंटेग्रिटी भी लूज़ हो रही होती है, आप उसको चेंजेस करके आगे सेंड कर देंगे, या उसके अंदर आप कोई और टूल अपना कोई और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल देंगे, मैलिशियस कोड डाल देंगे। सो ये तमाम चीज़ें है वो मैन इन द मिडल अटैक है। फिर डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस को समझना बड़ा आसान है, इट्स काइंड ऑफ एन अटैक एक्चुअली। डिनायल ऑफ सर्विस ये होती है कि आप इतनी रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं यूज़र की वेबसाइट के ऊपर, वो सॉरी यूज़र से मेरी बात थी मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर, कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ, तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है या रुक जाती है, ठीक। अब ये जो डिनायल ऑफ सर्विस है ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये अटैक एक तरह का जब उस सूरत में हो, वरना तो ये वैसे भी हो सकता है कि एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस करें तो वेबसाइट क्रैश कर जाए, तो ये एक सेपरेट मैटर है। लेकिन वैसे डिनायल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है वो एक बाकायदा तौर पर अटैक है। इसकी एक और फॉर्म, इसको पकड़ना आसान होता है इसलिए जब एक ही आईपी एड्रेस से, एक ही कंप्यूटर से, एक ही जगह से बार बार रिक्वेस्ट आ रही हूँ तो वो वेबसाइट उसको ब्लॉक कर दी। लेकिन फिर जो ज़्यादा ख़तरनाक जो मेथडोलॉजी निकाली हैकर्स ने वो थी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसके अंदर जो अटैक है वो एक्चुअली एक जगह से या एक सिस्टम से नहीं आ रहा होता, वो मल्टीपल सिस्टम्स में से आ रहा होता है, तो हैकर को पकड़ना, हैकर को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा चूँकि वो मल्टीपल जगहों से आ रहा होता है तो सिस्टम वेबसाइट ये अज्यूम कर रही होती है कि ये नेचुरल जो ना वो ऑर्डर्स आ रहे हैं या लोग एक्सेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली नॉर्मली लोग एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट सिस्टम्स पर अटैक हो रहा है। अब होता किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर जो अटैक होता है वो यूजुअली एक सिस्टम के बजाय वो क्या करता है, हैकर पहले पीसेस ऑफ कोड लगाकर बॉट्स इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जिन सिस्टम्स को उसने हैक करना है, हैक करके अपने बॉट्स वहाँ प्लेस कर देता है, और उन बॉट्स के थ्रू वो उन सिस्टम्स के थ्रू एक्चुअली एक्सेस करके और अटैक हो रहा होता है। तो वेबसाइट को लगता है कि ये तो नॉर्मल मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल ऑर्डर्स नहीं होते और वो एक्चुअली एक अटैक होता है कि जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो जाता है। इनसाइडर अटैक्स, जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने अगर जिक्र किया था, इनसाइडर अटैक्स की जब कोई बंदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है वो लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उसके बाद इन्फॉर्मेशन एक्सेस उसको सेल आउट कर रहा हो या दे रहा हो, या उसको इस्तेमाल करते हुए वो हैक करने के लिए कर रहा हो, या ये कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो टू द हैकर कि किस तरह से उसका सिस्टम को हैक करना है, कहाँ से उसकी वीकनेस है। फिर यहाँ पर आगे डिस्कशन होता है पोरली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का, कि किस तरीके से डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अगर सही से ना बने हुए हों तो उनकी भी वजह से सिक्योरिटी हैज़र्ड बन जाता है। तो अब उसकी बात करें तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था एसक्यूएल का इंजेक्शन अटैक्स। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई डिफरेंट फॉर्म्स फील्ड्स रखते हैं, इसमें लोग डेटा डालते हैं, अगर आपने हैंडल नहीं किया और कोई वहाँ पर एसक्यूएल की क्यूरी रन कर दे तो वो उसकी थ्रू एसक्यूएल, अगर मैं याद रखूँ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की जाती है टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन टू अ डेटाबेस। सो अगर उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया हुआ है प्रोग्रामिंग के दौरान तो यू कुड बेसिकली राइट सम एसक्यूएल code if you know about it into a particular field of a website or anywhere, and that would give you a lot of access to a lot of data because उन्होंने सिस्टम नहीं सही से बनाया हुआ एसक्यूएल की, वो क्वेरी के थ्रू वो जब जा रहा है तो डेटाबेस ही समझ रहा है शायद कहीं से रिक्वेस्ट आ रही है कि जिसके रिटर्न में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर आते हैं जीरो डी वल्नरेबिलिटी अटैक्स या वल्नरेबिलिटीज़ के सॉफ्टवेयर की वीकनेस। वो क्या है, वो जीरो डे वल्नरेबिलिटी बेसिकली ये कि जब सॉफ्टवेयर्स जो बनते हैं तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट नहीं होते फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे जो सिस्टम में वीकनेस होती है वो जीरो डे वल्नरेबिलिटी कराती है और उसको हम ऑब्वियसली हैंडल
कर सकते हैं बाय अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर रेगुलरली एंड गेटिंग द अपडेट्स ऑल्सो. इसी वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट टू बाय लीगल सॉफ्टवेयर सो दैट यू गेट दोज अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स डायरेक्टली एंड ईजीली. यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ एक बड़े मशहूर एक डेटा ब्रीच का. वो कहता है हार्ट ब्लीड बग. हार्ट ब्लीड जो था उसकी वजह से ओपन जो SSL जो था जो कि एक मेथोडोलॉजी है, जो कि एल्गोरिथम है दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर डेटा जब वो बेसिकली ट्रांसमिट किया जा रहा होता है. सो हार्ट ब्लीड बग के अंदर ये होता था कि हैकर्स को एक तरीका मिल गया था कि जिसके थ्रू दे वुड बी एबल टू एक्सेस अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज़ बीइंग सिक्योरली बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द इंटरनेट. सो हार्ट ब्लीड बग के केस के अंदर हुआ यही था कि जिसके अंदर लोगों के एक इस तरह का एक सॉफ्टवेयर का एक हैकिंग टूल था कि जिसको यूज़ करते हुए इवन SSL जो है वो जो ना आप रोक नहीं पाता था. तो अटैक कुछ इस तरह होता है कि आप वेरियस हैकर्स जो है वो बहुत सारा डेटा जो सेंड रिसीव हो रहा होता है यूजिंग ओपन SSL उसको वो एक साथ जो ना पिकअप कर लेते हैं और वो सारा का सारा जो डेटा है वो फिर वो सेल आउट कर देते हैं. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस कि वो TLS जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अब इस्तेमाल होना शुरू हुई. सोशल सिक्योरिटी के सोशल नेटवर्क की सिक्योरिटी के इशूज़ अलग हैं. उसमें बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो कि ऐप्स डेंजरस होती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर रही होती हैं. अक्सर वो जो होती हैं विच सेलिब्रिटी यू लुक लाइक, व्हेन विल यू डाई, इस तरह के लोग ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐप्स जो है वो आपका डेटा जो है वो सारा का सारा स्टोर करके जो है ना वो सेंड कर रहे होते हैं टू द हैकर्स वेबसाइट. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस. तो इस वजह से बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है सोशल नेटवर्क्स के ऊपर भी कि अब कि जो ना ऐसा ना हो. अंडरस्टैंड कीजिएगा कि दोनों केसेस के अंदर जो सोशल नेटवर्क्स हैं, चाहे वो गूगल के सोशल नेटवर्क्स हों, चाहे वो फेसबुक के सोशल नेटवर्क्स हों, दे आर ऑल ट्राइंग ऑल द टाइम, और जो दोनों के ऐप स्टोर्स भी हैं उनके ऊपर भी दे आर ऑल ट्राइंग टू कीप ऑन कैचिंग सच सॉफ्टवेयर और सच सिचुएशन. बट अंडरस्टैंड कीजिए कि इवन इफ दिस इज़ एक्चुअली ऑटोमेटेड, it actually takes time. So the amount of new apps that are actually getting created every day, and are being put up, and the amount of various Facebook pages and Facebook posts that are being put up every day, it becomes very difficult to go and catch all of them. So yes, Google के केस में भी और Apple के केस में भी they keep on removing apps that have been found to be dangerous, but that is not a perfect way. So it keeps on happening. So social networks के ऊपर और स्मार्टफोन्स के अंदर ये हमें बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. इसका सोल्यूशन जो है गूगल ने निकाला है कि वो वेरीफाइड ऐप्स का सिंबल मौजूद होता है, और एवरी टाइम जो है वो आप अपने प्ले स्टोर को एक्सेस करते हैं टू डाउनलोड एनी ऐप, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट तो गूगल एक्चुअली स्कैन्स इट एंड कन्फर्म्स कि हाँ वो सेफ़ मौजूद है एंड इट कैन बी एक्चुअली डन. यही केस एप्पल केस में होता है, वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और अपनी ऐप्स जो उनके पास अवेलेबल हैं उसमें से ऐसी कोई भी ऐप कि जो कि उनकी रूल्स को और उनकी सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती तो वो ऐसे ऐप को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम देयर स्टोर. तो मोबाइल प्लेटफॉर्म के भी इसी तरह सिक्योरिटी के इशूज़ है. ज़ाहिर है मोबाइल के केस में हमारे सबसे बड़ा मसला छिनने का है, तो उस वक्त आपकी सारी मोबाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन अगर बैंक की उसकी स्टोर्ड है तो दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. सो वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका वेरियस किस्म की जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपके पिन कोड के थ्रू आपकी एल्बम्स हैं, जो गैलरीज हैं जो आपके फ़ोटोज़ की, वो सारी की सारा सिक्योरिटी का हैज़र्ड इसके अंदर उसी से रिलेटेड आता है. इसी वजह से दीज डेज़ ज़्यादातर मोबाइल प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही जो मोबाइल्स जो बन रहे होते हैं उनमें फिंगरप्रिंट स्कैनर्स अब ऑलमोस्ट कंपलसरी है, बिकॉज दैट्स वन वे टू सिक्योर वट एवर इन्फॉर्मेशन इज़ इन योर सेल फोन. क्यों इससे ज़्यादा हम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकते? सेल फोन्स आर एक्चुअली टेक्निकली लिमिटेड डिवाइसेस. तो हम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अगर हम करने की कोशिश करें तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा, जो भी मैंने जिक्र भी किया था कि द बैलेंस जो है वो आउट हो जाएगा. आपके पास फिर टाइम का और दूसरी कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, which will cause the entire process to become really slow, and that's not what you want when you're using a mobile phone. So हमें उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है. फिर यहाँ पर जिक्र आ रहा है क्लाउड सिक्योरिटी के इश्यूज़ का. क्लाउड सिक्योरिटी क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी इश्यूज़ ये है कि क्लाउड स्टोरेज की बात हो रही है.
क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज ऑल द केसेस के जिसमें आपने जो डेटा है वो ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर रखा हो, जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर, एप्पल आई क्लाउड के ऊपर, ये सारा आपका क्लाउड रिलेटेड स्टोरेज की बात हो रही होती है। तो क्लाउड रिलेटेड स्टोरेज की सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर आपने सारा डेटा, इतना पर्सनल सारा डेटा रखा हुआ है, तो वो भी सिक्योर हो। तो याद रखिए क्लाउड की जो स्टोरेज की जो सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की खुद की होती है, which is exactly why you're actually using it. So it is preferred to actually resort to the cloud security provided by the services provider, whoever is actually providing you those cloud storage services, उन्हीं से उसको सिक्योर करवाएं और वही ज़्यादा बेहतर उसको सिक्योर रखते हैं आपका जो वो डेटा है जो आपने क्लाउड पर रखा हुआ है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी के इशू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज दिस न्यू एंड अपकमिंग फील्ड। द आइडिया इज कि एवरी डिवाइस इन योर होम वुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड विद सिक्योरिटी, तो एवरीथिंग वुड बी कनेक्टेड। तो आप सोचिए आपके घर के फ्रिज, आपका फैंस, आपके लाइट्स, आपकी एयर कंडीशनर्स, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड एंड देयरफॉर कनेक्टेड टू योर सिस्टम। सो इसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू कि ज़ाहिर अगर किसी के हाथ लग गया तो दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो ये भी एक सिक्योरिटी का इशू है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर से रिलेटेड। तो यहाँ पर उन्होंने 5.5 के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटीज़ के कुछ चैलेंजेस लिखे हुए हैं, उनके पॉसिबल इम्प्लीकेशंस और पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि जिसके केस के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या कुछ नुकसान हुआ है या हो सकता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि फिर हम या फिगर 5.5 के अंदर के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं कि जो कि जिनको हम यूज़ करके सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे टूल्स का जिक्र किया हुआ है इन दिस चार्ट, इन दिस फिगर विच इज़ फिगर 5.5 जो यहाँ पे शो हुआ है। Okay, so let's now talk about how you can achieve this kind of security. Figure 5.5 talks about these different types, different things that you can do to create this level of security, especially for e-commerce websites. One is of course encryption, which is converting any of your messages, and again I'll remind you, messages are not chat messages. Messages is any data, any information being sent between two systems. So converting them into a form that can only be readable by those two systems if they have a decryption methodology available to them. Otherwise they can't read them. Network security protocols are different set of steps that are used by different communication protocols. Communication protocols are the set of steps through which communication happens. Number 3, virtual private networks. You talk about them in detail, but these are basically methods in which you can make all of your data that's being transferred through public networks like the internet in a secured way. Fourth is firewalls. Firewalls are basically software and hardware solutions that restrict data access through or within a network, except for those that you allow. Proxy servers are servers that do something on behalf of your actual servers. We'll talk about that too. Intrusion detection prevention. This is another kind of a technology that actually prevents and in some cases prevents and in some cases detects and then informs you that somebody is trying to hack or access your systems illegally in an unauthorized way. So then software updates. Of course, that's very important. If you do not update your softwares, there will be weakness in your software that will be remaining there, and hackers and crackers can misuse them. Antivirus software. Self-explanatory that viruses can be a huge security hazard, and antivirus softwares are there to prevent that from happening. Access controls are basically a set of technologies, set of techniques that restrict that only people who are supposed to have access to a certain kind of data are going to be accessing it, others won't. And authentication procedures are a set of steps and processes that are used to confirm whether somebody is who they are claiming to be, or some machine or some system is who they are claiming to be. So let's look at each one of these one by one, and we'll understand the details of these if we do so. Here we go. So let's look at each one of these technology solutions one by one in detail. The first one up is of course encryption. As I mentioned, encryption is basically the process of converting all of your information, whatever you're communicating, whatever data you're sending, into a form that is not going to be readable by the other person unless they're able to change it back into a readable form. So in encryption, we have certain terms that we need to understand. Encryption is this process. Ciphertext is basically this coded text. There are various words for it. Ciphertext, encoded text, encrypted text. Now it could be text, it could be data, it could be images, it could be sound, it could be anything. The reverse of it, the form which can be readable by the other side, is deciphered text or deciphered data or decrypted data or decoded data. Okay, so there are other things that you need to understand with respect to this.
A cipher is basically the method through which you're going to convert this from plain readable form into this coded encrypted form. Please don't confuse coding with programming. That is a different kind of a coding. This is a different kind of code. Here, the objective is to hide that data. In that case, the objective is to ensure that you are programming for a system. So it's to ensure that the machine would understand you. This is two different things. Now, in any kind of good encryption system, there are two concepts. There's the substitution ciphering concept, and there's a transposition ciphering concept. Substitution is when you replace each letter by some other letter that you replace. Say, for instance, one of the most famous substitution ciphers is the Caesar cipher, which was named after Julius Caesar, where each alphabet was replaced by the 13th alphabet. So A was going to be replaced by the 13th alphabet, which comes out to be A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. So you replace A with M and B with N, and so on and so forth. Transposition ciphers are where you would change the positions of your different text. So, for instance, you would change where A, if for instance A was supposed to be the first letter in your word, it would then get replaced by the 10th letter, and vice versa. A combination of both of these creates a much stronger encryption, algorithm. Encryption algorithms are the entire set of steps that you have to go through to encrypt something. Cryptography is actually the study, or cryptography is the process through which you do this encryption. Cryptology is the study of this kind of science, and crypto systems is the name given to the entire thing itself. Now, one of the most commonly known cryptographic systems is the symmetric key cryptography system. As the name implies, in symmetric key cryptography systems, there is a single key, which means the same method is used in reverse to convert the text or whatever information you've encrypted back to its readable form. So if you want to convert something, you follow those steps. You want to convert it back into a readable form, it is going to be reverse of those set of steps. So these kind of systems use only a single key, which is referred to as the secret key. So the biggest flaw, of course, in this system was that if this key were to be somehow stolen or gotten into the hands of a hacker or an enemy, then obviously the entire system fails. There are several very famous encryption systems. I will not go into the details because those are usually beyond the scope of your understanding. But just to remember the names, there is the DES, which was developed by the National Security Agency, which is part of the US government. So it is a 56-bit encryption key, where the ciphering method is based on 56 bits. This used to be a strong method way back then. Now it's no longer strong at all. So they came up with another solution, which is the advanced encryption standard, and that uses a symmetric key of up to 128 and in some cases 192 and now 256 bits of keys. The system that is more commonly used these days and which is far superior to the symmetric key system is the public key cryptographic system. The public key cryptographic system, as it says, it was developed by Diffie and Hellman. And in this system, instead of having a single key, we have two keys. Every device, every software, every system, every person that is part of that cryptographic system is going to have two keys. One of them is called the public key. The other one is called the private key. The public key is a key that is known to every other member in that system. The private key is only known and is only possessed by that system itself. No one else knows about it. Another rule of the system is if you encrypt something using some system's public key, it can only be decrypted by that very system's private key. These are the rules. So, for instance, if we take the example of Alice and Bob, let's say these are two people who are part of the cryptographic system which uses a public key cryptography methodology. So they both will have their own pairs of public and private keys. Now, if Alice wants to send a message to Bob and Alice uses, obviously Alice does not have access to Bob's private key. Only Bob has access to Bob's private key, while Alice only has access to her own public key as well as her own private key. So if she wants to encrypt something and send it to Bob, then obviously she should be using Bob's public key. Why? Because if she uses her own public key, then only she will be able to decrypt it back, because she will then need her own private key and no one else has access to it. If she were to want to use Bob's private key, she can't, because only Bob possesses Bob's private key. So the only way for her to send something in a hidden form to Bob will be to use Bob's public key and encrypt that message or that data and then send it. This will ensure confidentiality. So and when Bob will receive it, they will use their own private key to decrypt that particular message and will be able to read it because nobody else can. So remember that these are the two basic methods. Now in figure 5.6, it uses there's a description of a public key cryptographic system.
So let's go through those so that we can understand the concepts better. In the public key cryptographic system of this simple case, it says the sender, who is Alice in this case, creates a digital message, whatever message it may be. It may be a data file, a music file, a sound file, whatever. We create a message, and that message could be any document, even anything. We creates a message and uses the recipient's public key. I just gave you an example of Alice Mob. This recipient's public key and encrypts it. In the other audio recording, I've used the word lock. That's just for your understanding. The correct term is actually encrypting. So they encrypt it using the public key of the recipient. Once it is done, and that is available in the public directory, everyone's public keys are available to everybody else. So once that is done, they then by doing this, they end up with a ciphered text, an encoded form of their data, or their encrypted form of their data. Now they can send it, and it can only be read by the recipient, because only they have their own private keys and only they can decrypt it. Otherwise, it is impossible to reverse engineer it. I wouldn't say the word would be impossible, but it is extremely difficult. The correct term for it is computationally non-trivial. In other words, even computers will have to spend a lot of resources to be able to do it. It is next to impossible. So it would take them hundreds of years to do this. So then this message is then sent over the internet or any other public network without the fear of it being stolen. And then when the recipient receives it, they use their own private key to decrypt it and read it. This is how a normal encryption system works in a public key cryptographic system. So these keys are referred to as one-way function. In other words, you cannot reverse engineer it. To give you an example, understand, just for an example, the key method or the encryption method may even require, in some cases, for instance, it requires two very large prime numbers to be multiplied by both. And you end up with one single very large prime number, and that's used in a mathematical function to convert all the text into a form that can be read. Now, even if you get access to that number, you cannot use that number to find out the original prime numbers. So that's why. That is an example for you to understand that how encryption actually works. Now, public key cryptographic system also uses another concept, two different concepts. To be precise, it uses digital signatures and hash digests. Now recall that we just used an example and explained that when you were sending that message was hidden. But that was only confirming one requirement of security. In the beginning of this section, we talked about the requirements of security, which includes confidentiality, integrity, non-repudiation, utility, authentication, and authorization. So remember that from that perspective, we've only just achieved confidentiality. We still need to ensure somehow that the message has not been changed. That is done through hash digests. And in order to ensure that it is authenticated, that this message is actually coming from the person who they're claiming to be, you use digital signatures. And let's talk about what those are. So when the same idea or the same example is going to be used, but only slightly differently. So let's look at figure 5.7. Now in figure 5.7, it says the same steps, but it has these two additional steps. So let's talk about it. The sender creates their message, whatever it is, a data file, a music file, a sound file, an image file, anything. And then that message or that file is hashed. They use a hash function, and a hash function is a mathematical function. Again, it is a non-trivial function. In other words, using it or applying it is very easy, but reverse engineering it is non-trivial. It is not simple. It is difficult. It is nearly impossible even for a computer. So using that, you end up with a hash digest. Now, what is a hash digest? A hash digest is a number which acts like a sort of a summary. It doesn't actually represent the entire information. It just acts like a summary of all of that information. Okay? And what happens is that uske baad the sender encrypts the message and the hash result both with the recipient's public key. Okay? And after that, they actually send it. And before they send it, what they do is they do something else as well. So I'll repeat it again. You first create a message, you then use a hash function on it and end up with a summary which is in a hexadecimal form, a set of numbers that represents that message. Then this message and the hash itself, the hash number, which is the hash digest, both of them are encrypted using the recipient's public key. Then the sender uses their private key to encrypt it again. This second encryption is happening because, understand this, the only person who has access to the sender's private key is the sender themselves. Now, if it were to be received by someone and if it would be found to be encrypted by the sender's private key, the only way to decrypt it would be to use the sender's public key.
which is what the receiver will do, and that will ensure that the sender was actually really the person who they were claiming to be, because only they have access to their private key. ठीक है, बहुत आसान है समझना. सेंडर ने अपनी ही प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट किया. जब अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पब्लिक की उसको डिक्रिप्ट कर सकती है, और रिसीवर उसी की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा, और इस तरह वो कंफर्म हो जाएगा कि भेजने वाला वही सेंडर था जो कि उस मैसेज की इंफॉर्मेशन में लिखा है कि वो वही था. ठीक है, सो दिस कन्फर्म्स ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेट हो जाता है, गारंटी हो जाती है कि उसी ने भेजा है. अब जब वो दूसरे एंड पे रिसीव होने के बाद उसने उस सेंडर की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर दिया, तो दो चीज़ें रिसीवर के पास आ गई, एक हैश आया और एक मैसेज इटसेल्फ आया. फर्ज कर लेते हैं कि मैसेज को किसी ने चेंज किया है. अब रिसीवर उस मैसेज का नए सिरे से हैश निकालेगा, बिल्कुल वही हैश फंक्शन यूज़ करते हुए जो सेंडर ने इस्तेमाल किया था. अगर रिजल्टिंग हैश सेम नहीं आया तो ये इस बात का सबूत होगा कि मैसेज में तब्दीली आ गई, क्योंकि हैश फंक्शन की क्वालिटी होती है कि जब भी आप किसी भी मैसेज को का हैश निकालते हैं तो अगर उस मैसेज में ज़रा सी भी तब्दीली आए तो पूरा का पूरा हैश का जो डाइजेस्ट, जो हैश का जो नंबर आता है वो तब्दील हो जाता है पूरा का पूरा. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिजिट चेंज हो रहा बिकॉज ऑफ वन अल्फ़ाबेट बीइंग चेंज, पूरा का पूरा तब्दील हो जाता है. तो इस वजह से अगर वो हैश जो उस सेंडर ने भेजा था वो और जो अब उस मैसेज का हैश रिसीवर ने दोबारा से निकाल के कंफर्म करने के लिए चेक किया है, अगर वो सेम आते नहीं हैं तो ये प्रूफ होता है कि डेटा में इंटेग्रिटी नहीं थी, डेटा को किसी ने चेंज किया था, टेम्पर किया था. और अगर वो सेम आता है तो रिसीवर को कंफर्म हो जाता है कि डेटा के साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं हुई है और डेटा वैसे का वैसे ही है. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अब जो है वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज आया हुआ है उसके पास, उसको वो अपनी ही, ऑब्वियसली वो तो उसको खोल चुका है अपनी ही प्राइवेट की से, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेगा. दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स. इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि कहलाता है डिजिटल एनवेलप का, जो कि ऑथराइजेशन को कंफर्म करने के लिए होता है. वो किस तरीके से, जो ओरिजिनल मैसेज होता है और जो मैसेज को जो इंक्रिप्शन वगैरह हो रही है वो सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से होती है. फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप लार्ज जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रही होती हैं और उनके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स में आता है वो ये आता है कि आपको जो है लार्ज डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर भेजनी होती है, लार्ज डॉक्यूमेंट्स को, और उन लार्ज डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है फ्रॉम एन अथॉरिटी. ठीक है, सॉरी, आई थिंक बीच में हम पहले डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात कर ले, फिर हम डिजिटल एनवेलप्स को ज़्यादा समझ सकेंगे. सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल सर्टिफिकेट्स. डिजिटल सर्टिफिकेट्स ये है कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजी जा रही हैं, रिसीव की जा रही हैं, तो आपको ये कैसे गारंटी होगी कि सेंडर वही है जो वो क्लेम कर रहा है या रिसीवर वही है जो वो क्लेम कर रहा है. मैसेज के केस में तो ये कन्फर्म हो गया डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, जो कि अभी उसने अपनी प्राइवेट की से जब उसको इनक्रिप्ट करके भेजा था, लेकिन ये कैसे कन्फर्म होगा कि वो शख्स एक्चुअली वही है. तो उसको करने के लिए एक लार्ज थर्ड पार्टी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हो, हर जो मेंबर है उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का, उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देते हैं. वो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो अथॉरिटी सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन सबसे मांगती है कि सब लोग जो इस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का पार्ट बनना चाह रहे हैं वो अपनी क्रेडेंशियल्स, अपने डेटा दें. उसके बाद उसके डेटा को वो अपनी पब्लिक की से, सॉरी, अपनी प्राइवेट की से साइन कर देते हैं, यानी कि उसको गारंटी दे देते हैं कि हाँ जी. और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से वेरीफाई कैसे होगा, क्योंकि उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी पब्लिक की अवेलेबल होगी, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि भेजने वाला एक्चुअली वेरीफाइड है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक अथॉरिटी के पास है और हमने उसको गारंटी दिया है. तो याद रखिए, डिजिटल सिग्नेचर कहते ही इस चीज़ को है कि जब सेंडर अपनी प्राइवेट की से किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करे, और मकसद उसका यही होता है कि वेरीफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए कि भेजने वाला वही है जो वो क्लेम कर रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने फिगर 5.9 के अंदर एक एग्जांपल देकर उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करता है कि उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए इंटरनेट को, और वेरियस सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ फिर रिजल्ट के अंदर आपसे कहती हैं आप हमें सारा डिटेल्स दीजिए, और वो डिटेल्स देने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं जो उनकी तरफ से गारंटी के तौर पर भेज दिया जाता है ताकि आपका क्लेम कन्फर्म हो सके. फिर हम बात करते हैं डिजिटल एनवेलप्स की. ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो बड़ी स्लो प्रोसेस है. ठीक है, इसी वजह से ख़ास तौर से जब हम लार्ज डॉक्यूमेंट्स को भेज रहे, रिसीव कर रहे होते हैं, तो उन सूरतों के अंदर जो हमारे पास मेथोडोलॉजी होती है वो है डिजिटल एनवेलप्स की. डिजिटल एनवेलप्स में होता ये है कि हम एक सिमेट्रिक की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक की फास्टर है, उसमें सेम की ही इंक्रिप्शन के लिए होती है, सेम की ही डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है. तो हम क्या करते हैं कि हम सिमेट्रिक की को इस्तेमाल करते हैं टू इनक्रिप्ट हम एक्चुअली सिमेट्रिक की को इस्तेमाल करते हैं टू इनक्रिप्ट द मैसेज इटसेल्फ, लेकिन उस सिमेट्रिक की को सेंड और रिसीव करने के लिए हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट गौर से समझिए.
की जो है वो अगर सिमेट्रिक की जो सिस्टम है, सिमेट्रिक की इटसेल्फ जो है, जो की है जो जिससे रिवर्स भी हो जाता है और जिससे इनक्रिप्ट भी हो जाता है, वो इटसेल्फ वो सिस्टम के अंदर फ्लॉ ये था कि अगर वो की किसी के हाथ लग जाए तो आपका सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस की से किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करें तो हमें डर था कि वो की अगर हाथ लग गई तो खेल खत्म। लेकिन अगर हम किसी लार्ज मैसेज को कर रहे हो तो उसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से करेंगे तो बहुत स्लोली इनक्रिप्ट होगी, बहुत स्लोली डिक्रिप्ट होगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इनक्रिप्ट तो सिमेट्रिक की से करते हैं और फिर उस सिमेट्रिक की को अपने सेंडर और रिसीवर को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के थ्रू भेज देते हैं ताकि हमारी दोनों चीज़ों से सूरत से इनक्रिप्शन हो जाए। तो जब हम सिमेट्रिक की को इनक्रिप्ट करके भेज रहे होते हैं तो ये डिजिटल एनवेलप कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हमने अपनी एनवेलप के अंदर मैसेज रखा हुआ और उस मैसेज के इसको और मज़ीद जो है वो बॉक्स में एक बंद करके सिक्योर करके हमने भेजा हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल एनवेलप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिटी गुड प्राइवेसी का। प्रिटी गुड प्राइवेसी एक पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि ईमेल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आप पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वीकनेसेस या लिमिटेशंस हैं वो ऑफकोर्स सर्टिफिकेट अथॉरिटीज से रिलेटेड है कि जब मैसेज वगैरह सेंड रिसीव हो रहा, अगर कोई इनसाइडर कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे फेमस सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है जो वेबसाइट्स के केस में इस्तेमाल होती है वो है वेरीसाइन। आपने अक्सर वेबसाइट्स के नीचे लिखा हुआ भी ग्रीन कलर से टिक लगा हुआ होता है, रेड से वेरीसाइन, रेड और वाइट कलर का उसका लिखा हुआ होता है। दैट्स बेसिकली द मेथोडोलॉजी। फिर उसके बाद वेरियस चैनल्स की सिक्योर करने के तरीके हैं। इसकी भी अगेन डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं, दीज आर टेक्निकल स्टाफ, बट सिर्फ आप सरसरी तौर पर अगर उसको समझ ले तो देयर इज सिक्योर सॉकेट लेयर जो कि एक मेथोडोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है जब आप वेबसाइट्स के दरमियान प्राइवेट डेटा भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, और उसकी नई फॉर्म है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। क्योंकि सिक्योर सॉकेट लेयर जो अभी कुछ देर पहले इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको हार्ट ब्लीड जो एक बग बताया था वो सिक्योर सॉकेट लेयर का ही एक बग है और वीकनेस है वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो बात आती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स अलाउ करते हैं किसी भी एक यूज़र को एक्सेस करने का कि वो सिक्योर तरीके से इंटरनेट के थ्रू डेटा भेजे। तो क्या होता है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इसको यूँ समझ लीजिए जैसे एक पब्लिक रोड है, आप उस पर सिक्योरली नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको बहुत तुर्रम खान आदमी है, कोई बड़े आदमी है, तो आप रोड के ऊपर अपना रोड खाली करवा कर आप प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर वर्ड प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ही सेट ऑफ स्टेप्स होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, या आप आई सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर और गाड़ियाँ लेकर आप रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, तो आपको आपकी कैरावैन बनाकर वो लेकर जा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाहें कि आप इंटरनेट के थ्रू आप डेटा भेजें, और इंटरनेट इज़ अ लेस सिक्योर नेटवर्क क्योंकि वो एक पब्लिक नेटवर्क है, तो आप उसके अंदर एक हिस्सा ऐसा बनवा लेते हैं अपना टेम्प्रेरी तौर पे जो कि आपके लिए सिक्योर होता है, जो कि इनक्रिप्टेड होता है, और फिर उसके थ्रू उस चैनल के थ्रू उस रास्ते के थ्रू आपका डेटा सेंड रिसीवर होता है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कराता है जिसको हम VPN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वाईफाई के ऊपर वेरियस किस्म की सिक्योरिटी की और इंक्रिप्शन की मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत सबसे पावरफुल जो इस्तेमाल होती है वो WPA2 होती है, और वो ज़रूर रखनी चाहिए आपको अपने वाईफाई के ऊपर भी। और ये WPA2 जो होती है बेसिकली AES इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी यूज़ कर रही होती है, जो हमने शुरू में बात की थी, जो 128 से लेकर 256 के बिट्स की को इस्तेमाल करती है। नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने का और बहुत सारे तरीके हैं। फायरवॉल्स हैं जैसे जो कि बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर आप फायरवॉल पे कह दें कि फ़लाँ जगह से डेटा नहीं आना है इस नेटवर्क के अंदर, तो वो रोक देगा वो डेटा को। या भी कह दें कि फ़लाँ जगह का डेटा एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए फ्रॉम विद इन दिस नेटवर्क, तो आप जब कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो वो रुक जाएगी। तो फायरवॉल इसीलिए नाम से याद रखें, वॉल ऑफ फायर के, जो कि रोक देगी किसी भी ख़ास जगह के डेटा का एक्सेस या ख़ास जगह के डेटा का एक्सेस करने की रिक्वेस्ट। याद रखिए कैसे करेगा ये, IP एड्रेसेस के थ्रू। आप कह देंगे कि फ़लाँ जगह के IP एड्रेसेस को रोक देना है और फला जगह के IP एड्रेसेस को एक्सेस नहीं करने देना है। तो दैट्स हाउ फायरवॉल्स विल वर्क। फिर उसके बाद आता है प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी सर्वर्स या वो सर्वर्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सारी कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे होते हैं। एक तरह का वो आपका गार्ड की तरह का काम करते हैं, एक बॉडी गार्ड की तरह का काम करते हैं, या गेट कीपर की तरह का काम कर रहे होते हैं इन अ नेटवर्क। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल डायग्राम बना के दिया हुआ फिगर 5.11 के अंदर, कि जिसमें वेरियस क्लाइंट्स दिखाए हुए उन्होंने। क्लाइंट्स आर दीज कंप्यूटर्स, कि जो कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप सारे, और फिर फायरवॉल है, फिर वेब सर्वर है, और फिर रिमोट क्लाइंट, और फिर रिमोट सर्वर है। फिर यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल यही देके बताया हुआ कि वो डेटा जो है सिर्फ जो फायरवॉल अलाउ करेगा सिर्फ वही डेटा क्लाइंट्स तक पहुँचेगा, वरना वो वहीं पे रोक देगा, जाने वाला भी और आने वाला भी। इसी तरह प्रॉक्सी सर्वर्स का काम है कि प्रॉक्सी सर्वर्स के केस के अंदर इंटरनल नेटवर्क जो है सारा जो है वो आपके एक सर्वर से गुजर के जा रहा है। अगर उस सर्वर पर आप रोकना चाहें तो सर्वर रोक सकता है। जो आप और मैं अक्सर औकात प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, जो हमें अलाउड नहीं होती, वो हो यही रहा होता है चूँकि वो आपके बिहाफ पे कर रहा होता है, तो आपका जो ISP है या जो सर्विस है जो रोकना चाह रही है वो नहीं रोक पाती, क्योंकि आपका
प्रॉक्सी सर्वर आपके बिहाफ पे कर रहा होता है। इसका एनालॉजी बहुत सिंपल सी है, इस तरह से कि लेट्स से कि आपके एक दुकान वाले से पड्डा हुआ है, ऑब्वियसली अब वो दुकान वाला आपको तो सामान देगा नहीं, तो आप अपने दोस्त को पैसे देके भेज देते कि तुम मेरी जगह पे ले आओ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो वो मुझे देगा नहीं, तो प्रॉक्सी बन जाओ, मेरी रिप्लेसमेंट के अंदर चले जाओ तुम। तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉक्सी सर्वर काम करता है कि वो आपके बिहाफ के ऊपर आपका डेटा लेकर आ रहा होता है और वो जो ना हैंडल कर रहा होता है। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सिस्टम्स ताकि वहीं पर रोक ले। फिर आते हैं आपके इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम ये होता है कि वो आपके नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं, किसी भी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस नेटवर्क के ऊपर डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रही होती है, कोई डिफरेंट पैटर्न ऑफ डेटा आ रहा जा रहा होता है, या कुछ ऐसे दो कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा आ रहा जा रहा है जो आमतौर से नहीं जाता, वो लार्ज अमाउंट डेटा जाता है, तो वो अलर्ट कर देता है वेब एडमिनिस्ट्रेटर को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको बता देता है, उसके सिस्टम के ऊपर अलर्ट आ जाता है। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें जैसे कि इंट्रूशन डिटेक्शन है, फ़र्क है कि बजाय डिटेक्ट करने के वो प्रिवेंट करना शुरू कर देता है ऐसे डेटा ट्रांसफर्स को, ऐसे डेटा एक्सेस को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की वेरियस सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो एक्सेस नहीं करने देते या रोकते हैं डिफरेंट फाइल्स को। आप अक्सर विंडोज में कोई फाइल रन करते हैं तो आपसे फिर से परमिशन मांगता है, वो यूज़र एक्सेस कंट्रोल्स का पार्ट है। इसी तरह एंटीवायरसेस हैं जो कि बहुत सारे फेमस है, मेलवेयर बाइट्स की कंपनी है, मैकफी है, साइमनटेक है, AVG है, कैस्पर्सकी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो वायरसेस को रोक रही होती हैं, उसको एनालाइज कर रही होती है हर फाइल्स को, अगर उनको किसी पे भी सस्पिशन होता है तो उस फाइल को रोक देती है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने बात की है कि ई कॉमर्स का एक सिक्योरिटी प्लान बनना चाहिए, और वो ऑफ कोर्स आर अ सेट ऑफ स्टेप्स, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है। किसको डेटा का एक्सेस होना चाहिए, कौन कंप्यूटर पे कब एक्सेस कर सकता है, किस वक्त करेगा, बगैर लॉक किए हुए सिस्टम को नहीं जाएगा, लॉग ऑफ करके जाएगा, लॉग इन एक दूसरे शेयर नहीं होंगे, तमाम पॉलिसीज़ के पार्ट्स हैं। तो वेरियस किस्म की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो रूल्स बनते हैं, उसमें सबसे पहले असेसमेंट ऑफ रिस्क्स होती है कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम है जो एट रिस्क है, कौन कौन से सिस्टम है जिसका क्रूशल डेटा है, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाते हैं। फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम एक बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनता है, एक डिपार्टमेंट बनता है जिसका काम होता है यूजर्स को ट्रेन करना, उनको सिखाना कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हमने सिक्योरिटी के लिए। वेरियस एक्सेस कंट्रोल्स के रूल्स बनते हैं, जो भी मैं बता रहा था कि कौन सा शख्स या कौन सा सिस्टम नेटवर्क के कौन कौन से हिस्से को, कौन कौन सी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, कब कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर सेटअप होते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, वेरियस कीज़, आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, इनको इस्तेमाल करते हुए। फिर हमारे पास और भी मेथडोलॉजी आती हैं। फिर हमारे पास आती है फॉर इंस्टेंस बायोमेट्रिक्स का वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। बायो मीन्स लाइफ, मेट्रिक इज मेजरमेंट, सो बायोमेट्रिक विच इज मेजरमेंट्स ऑफ लाइफ रिलेटेड थिंग्स। सो वेरियस जो सिस्टम्स होते हैं सिक्योरिटी के, वो बायोमेट्रिक सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। आई स्कैन्स, आपके आइरिस स्कैन्स होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन्स होता है, वॉइस स्कैन्स होते हैं आपके वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू, ठीक है। वेरियस आपके बायोमेट्रिक सिस्टम्स जो हैं वो वेरियस मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी टोकन्स जो होते हैं वो फिजिकल डिवाइस हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके थ्रू सिक्योरिटी, मिसाल के तौर पे आपको कोई कार्ड दिया हुआ है, आपको कोई USB फ्लैश ड्राइव दी हुई है जिसको आप लगाते हैं तो आपका सिस्टम में लॉगिन हो सके, बिल्कुल इस तरह से फिजिकल चाबी होती है, ठीक है। ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ है कि किस शख्स को किस लेवल तक की डेटा को एक्सेस करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, अगर हम एक सिस्टम बनाते हैं कि जिसके अंदर सारे टीचर स्टूडेंट सबका एक डेटाबेस एक ही जगह होता है, वहीं पे एग्जाम्स पड़े हुए होते हैं, वहीं पे फाइल्स पड़ी होती है, असाइनमेंट पड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली टीचर्स को एक्सेस होगा उस फाइल्स के ऊपर जो कि एग्जाम्स हैं, स्टूडेंट्स को एक्सेस होगा प्रीवियस एग्जाम्स के ऊपर लेकिन करंट एग्जाम पे नहीं होगा, स्टूडेंट को एक्सेस होगा अपनी ग्रेड शीट्स के ऊपर, दूसरे की ग्रेड शीट वो नहीं देख सकता, टीचर के पास सारे का एक्सेस होगा। सो इसी तरीके से वेरियस ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ बनती है कि किस लेवल का डेटा का एक्सेस या किस इंफॉर्मेशन के लेवल का एक्सेस किसको दिया जाए और कौन कौन से यूज़र अकाउंट्स उसके लिए अलाउड है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम का, वो सिक्योरिटी ऑडिट है कि पूरी ऑडिटिंग होती है, चेक होता है, पूरा चेक रन किया जाता है कि क्या वाकई में रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस हैं, क्या वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं, क्या हमारे पर रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कौन कब एक्सेस कर रहा है सिस्टम्स को, किस किस की मकसद के लिए एक्सेस कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट या जिसे हम IS ऑडिट कहते हैं उसके अंदर फॉल करती हैं। लॉ और पब्लिक पॉलिसी कहाँ पे प्ले करती है, ज़ाहिर है लॉ का बहुत बड़ा एलिमेंट है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के बगैर ये चीज़ें होंगी ही नहीं। वो आपको अलाउ करता है कि अगर कोई ये रूल्स तोड़ेगा तो फिर हम उसको कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे, हम कैसे उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दैट वे। सो ई कॉमर्स की लेजिस्लेशन से मुताल्लिक़ यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया हुआ है, विच बेसिकली मीन्स के द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं जो वो क्या क्या हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो उन्होंने जिक्र किए वो सारे US रिलेटेड, लेकिन में से बहुत सारे जो हैं वो वर्ल्ड ओवर इम्प्लीमेंट होते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ ऐसे बहुत सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने चाहिए। सो दैट्स वेरी मच द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
and I would recommend that you definitely go through the entire Bitcoin chapter right after this, because ये क्रिप्टोग्राफी के जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बिटकॉइन को समझना आसान हो जाएगा. डिजिटल सिग्नेचर्स का, हैशेस का, डिजिटल सर्टिफिकेट्स का, ये तमाम का जो, और इंक्रिप्शन इटसेल्फ का जो आइडियाज़ है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वही इन बिटकॉइंस को क्रिएट करने में, वही बिटकॉइन सिस्टम्स को, ब्लॉकचेन्स को भी इवन मैनेज करने में होती है. याद रखिए, इंक्रिप्शन सिर्फ डेटा के लिए नहीं हो रही थी. इंक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती है इन वेरियस फॉर्म्स. सो आई होप दिस चैप्टर विल बी यूजफुल फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.